अभी हम आज की क्लास को अब आगे स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने प्रॉपर्टीज देखी थी, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सरकम सेंटर, ये सब प्रॉपर्टीज देखी थी। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी। तो उसमें मैंने एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट आपको बताया था, जिसको हम बोलते हैं इन सेंटर ऑफ द सर्कल। और उसकी हमने प्रॉपर्टी देखी थी कि एंगल बाइसेक्टर को अगर हम एक्सटेंड करते हैं और अगर वो मीट करता है सरकम सर्कल को एक पॉइंट के ऊपर, तो मैंने आपको बताया था कि सरकम सेंटर से जो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो भी उसको एक्सटेंड करेंगे, वहीं जाके मीट करता है। एक ये प्रॉपर्टी थी। बट वो वाली प्रॉपर्टी मोस्टली सर्कल से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें वो यूज आ सकती है किसी एक ट्राइंगल के लिए। इन जनरल एंगल बाइसेक्टर की जो इक्वेशन होती है वो डिफाइन करी जाती है कि एंगल बाइसेक्टर पे जो भी पॉइंट होता है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों लाइन से इक्वल होता है। तो इस तरह से हम इक्वेशन लिखते हैं कि x, y पॉइंट का दोनों से डिस्टेंस इक्वल है, a1x प्लस b1y प्लस c1। ये सबको पता होगी। तो इसको प्लस माइनस साइन से ओपन करते हैं तो दो एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन आती है। एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होता है और एक ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होता है। हम एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कैसे बताते हैं, ऑब्ट्यूज कैसे बताते हैं, अगर किसी को क्लियर नहीं है तो मैंने जो जेईई मेन के वीडियो शेयर किए थे, आई शेयर्ड जेईई मेन वीडियोस in which you can understand if you are able to identify which is acute angle bisector, which one is obtuse angle bisector. That is basically a basic concept. Generally इस पे क्वेश्चन नहीं आता. No question has been asked till now that you have to find acute angle bisector or obtuse angle bisector. So that is just a theoretical part. Now angle bisector को हम क्वेश्चंस में कैसे यूज करते हैं? How we use angle bisector in questions? That is more important. तो इसमें हम यहाँ पे एक चीज देखते हैं, that is diagonals of a rhombus. So in rhombus, I have told you कि this is one of the quadrilateral in which diagonals bisect the angle. तो ये हमारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है रोम्बस के अंदर, that this angle and this other angle, they both are equal, they are angle bisector. Same property is also there in square also. So how this angle bisector equation can be used in rhombus, that is more important. अगर हमें suppose rhombus में if you know the equations of adjacent sides, suppose we know these two equations and we have to define the equations of angle bisector or one of the angle bisector or any point on the angle bisector, or if I am talking about angle bisector, that is nothing but diagonals. So in question what it will be written is, it's a question of rhombus, and if something is asked about the diagonals of the rhombus, so you always have to remember diagonals are nothing but angle bisectors of the rhombus. तो वो rhombus की angle bisector को represent करती है, ये आपके दिमाग में हमेशा होनी चाहिए। और इसका मतलब क्या है कि we can find the equation of these angle bisectors or diagonals just by using this formula. So if we have to find the equation of angle bisector, we will use this formula, that y minus x minus 2 upon under root of 2 is equal to plus minus y minus 7x minus 3 upon under root of 50. So this is the equation of angle bisector. Now in this question anything else can be given, like point on angle on diagonal or something. But this is important. You always have to remember, keep this in mind. You can easily find the diagonal equations which can be used to solve the question. That is the most important thing. And you can even find which is this diagonal, because you can find the intersection point of these two sides. That will be this one. और यहाँ पे इस पॉइंट से पास करने वाली जो डायगोनल होगी, the diagonal passing from this point, which will be one diagonal that either positive sign or negative sign. You can find the equation of this diagonal. And the other equation will be the equation of the other diagonal. इस तरह से हम दोनों डायगोनल की इक्वेशन निकाल सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन सिंपलर हो जाता है, जो भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है आप इवैल्यूएट कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इज थ्री साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. Isosceles triangle is same as that of this one, that is diagonals of a rhombus. Because in rhombus, if you will see, this is an isosceles triangle because this angle and this angle is already equal. Why this is equal? Because this is angle bisector, so this angle and this angle are equal, and now this is we know alternate interior angle. तो ये क्या है, एक isosceles triangle ही है. तो isosceles triangle का भी ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि isosceles triangle में we know the equation of two sides which is making equal angle with the third side, and if we have to find this equation of the third side, so that is nothing but angle bisector. So we will get two equations. Always remember, we will get two equations, because this type of diagram, if I am making these two lines, it can be extended to the other side also, and you will get two equations, either this one or this one. So here also, if you will see, these are the equal sides, something like this, and these are the equal sides. So you will get two equations of angle bisectors like this. You will get, so there will be two equations of the sides. तो इस तरह का क्वेश्चन it can be made in multiple choice question, like there will be multiple correct answers. तो वो वहां पे यूज आ सकता है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है ये वाला,
एक और इस तरीके से भी हम एंगल बाइसेक्टर में डिफाइन करते हैं, दैट इज दिस वन। इफ लाइन L1, line L2 and line L. Line L is the angle bisector. You can even say that any point on angle bisector, any point on line L1, if you will take the mirror image about the angle bisector, it will lie on the second line. It can be easily proved. This is the same condition which we discussed also previously, that this is the angle bisector of the triangle. और अगर हम यहाँ पे इस वर्टेक्स का लेते हैं मिरर इमेज अबाउट द एंगल बाइसेक्टर, दैट विल लाई ऑन द अदर साइड. दिस इज द सेम थिंग, दैट image of every point on L1 with respect to L, it lies on L2. So it denotes L is the angle bisector of L1 and L2. तो अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है, this something like this is written in the question, then you can easily say that it is talking about angle bisector of L1 and L2. The same property we have discussed in previous class, जहां पे मैंने बताया था इसका यहाँ पे जो मिरर इमेज होता है एंगल बाइसेक्टर के पास, it lies on the third side. तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एंगल बाइसेक्टर की. एंगल बाइसेक्टर की इस इक्वेशन के ऊपर, that is to find obtuse or acute, generally question is not asked. Mostly the question is asked related to these diagrams and this isosceles triangle or rhombus or something like this. Just let's take a look at the question. हाँ रवि बताओ. So isosceles triangle में कंडीशन क्या होना चाहिए कि वो थर्ड साइड ही देगा, वो जो हम लोग एंगल बाइसेक्टर निकालेंगे. This will be the third side. हाँ, so उसका कंडीशन क्या होना चाहिए, जो हम लोग एंगल बाइसेक्टर फाइंड करेंगे उस इक्वेशन से, तो वो ये देगा या फिर वो देगा. कौन सी साइड देगा? बेसिकली इस केस में क्या आएंगे, देयर विल बी टू आंसर्स. तो आइसोसेलेस ट्रायंगल आप इन दोनों लाइन से दो तरीके से बना सकते हो, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. एक तो आपने यहां बनाया और एक अगर मैं इस लाइन को यहां एक्सटेंड कर दूं, इफ आई विल एक्सटेंड इट हियर, यू कैन मेक आइसोसेलेस ट्रायंगल हियर आल्सो. समझ आ रहा है क्या कर रहा हूं? तो बेसिकली क्या है, वो जो लाइन है ना उसको अगर तुम यहां एक्सटेंड करोगे, दैट विल बी द एंगल बाइसेक्टर हियर. तो वो उसी की इक्वेशन के हिसाब से उसको रिप्रेजेंट करेगा. एंड यू कैन से बेसिकली कि यहाँ पे हम ये नहीं बोलेंगे कि दिस विल बी द एंगल बाइसेक्टर. बेसिकली हम ये बोल सकते हैं, सॉरी आई मे बी मिस्टेक मैंने किया है. पॉइंट ये है कि द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर दैट विल बी द पैरेलल टू द डायगोनल्स, और हियर द एंगल बाइसेक्टर इट विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड. द स्लोप विल बी इक्वल, बट द पॉइंट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन और समथिंग विल बी गिवन इन द क्वेश्चन फ्रॉम व्हिच यू विल फाइंड द थर्ड साइड. इट विल बी पैरेलल टू दिस, बिकॉज अगर हम यहाँ एक्सटेंड करते हैं तो जरूरी नहीं कि वो ये वाली लाइन हो, कोई ना कोई वो यहाँ पे भी बना सकते हैं. दैट इज द सिमिलर लाइन बिकॉज दैट इज द एंगल बाइसेक्टर, बट वो जो लाइन होगी थर्ड वाली, दैट विल बी पैरेलल टू दैट. समझ में आ रहा है आपको? यस सर. हाँ, तो बेसिकली ये कंडीशन हम अप्लाई कर सकते हैं. तो दिस टाइप ऑफ कंडीशंस मोस्टली क्या क्वेश्चन में अब लिखा नहीं होता, तो इसीलिए मैं जैसे रोमस में मैंने बताया था एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी इज इंपॉर्टेंट, जिससे आप डिफाइन कर सकते हो ना बेसिकली कि कहाँ पे वो लाई करेगा. अब इसके केस में अपन ये बोल सकते हैं यहाँ पे ये चीज. अब हम देखते हैं नेक्स्ट. जैसे यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इस तरह का क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल ABC इज देयर इफ A इज अ पॉइंट एंड दिस आर द इक्वेशन ऑफ ऑल्टीट्यूड एंड एंगल बाइसेक्टर रेस्पेक्टिवली ड्रॉन फ्रॉम B. तो मैंने क्या करूंगा, यहाँ पे एक ट्रायंगल ABC बना लिया. दिस इज पॉइंट A. इस पॉइंट से आई विल ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, दैट इज द ऑल्टीट्यूड, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट आई विल ड्रॉ ए एंगल बाइसेक्टर हियर. देन वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ BC. अब हमें इस साइड की इक्वेशन निकालनी. तो हमें जो इक्वेशंस दी हुई है अगर मैं बोलूंगा तो वी हैव बीन गिवन दिस इक्वेशन. दिस इज द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर 3x minus 2y plus 5 equal to 0. दिस इज द इक्वेशन जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है. और यहाँ पे अपने को क्वेश्चन में ये इक्वेशन दी हुई है ऑल्टीट्यूड की. ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन क्या है, 7x minus 10y plus 10 plus 1 equal to 0. तो बेसिकली अब अगर अपने को ये दोनों इक्वेशन दी है तो इन दोनों इक्वेशन से मैं निकाल क्या सकता हूँ. इफ टू इक्वेशंस ऑफ लाइन आर गिवन, वी कैन फाइंड दिस, वी कैन फाइंड पॉइंट P, राइट. तो हम ये निकाल सकते हैं, इसका कोऑर्डिनेट वी कैन फाइंड, राइट. तो अपने को ये कोऑर्डिनेट पता है, ये कोऑर्डिनेट पता है. अब हमें इक्वेशन ऑफ BC निकालनी है. वी हैव टू फाइंड दिस इक्वेशन. तो जो हमें इक्वेशन निकालनी है दैट इज नथिंग बट ए लाइन. एंड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, आपको एक पॉइंट चाहिए एंड यू नीड ए स्लोप. या आपको क्या चाहिए, 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन. इफ यू नो द 2 पॉइंट्स ऑन लाइन BC, यू कैन फाइंड इट्स इक्वेशन. अब एक पॉइंट तो अपने को यहां दे दिया, दैट इज जस्ट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीस टू लाइंस. तो ये पॉइंट अपन निकाल सकते हैं. अब क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये एंगल बाइसेक्टर, इसका मतलब ये वाला जो एंगल है यहाँ पे इसके बराबर है. तो यहाँ पे ये अपना L हो गई है लाइन, ये L1 ये L2. तो हमें पता है इसकी मिरर इमेज अगर हम एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग लेंगे, इट विल टेक इट्स मिरर इमेज अबाउट द एंगल बाइसेक्टर. इट विल लाई ऑन BC. तो हम ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे. अब ओके, मैंने डायग्राम बनाया फिर से यहाँ पे. द इमेज ऑफ पॉइंट A विल लाई ऑन
ए डैश बेसिकली बीसी पे वो लाई करेगी, दैट इज द। तो अब हम यहाँ पे ए डैश पॉइंट निकाल सकते हैं, वी हैव टू सिंपली अप्लाई द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला अपन क्या लगा सकते हैं, वो फॉर्मूला तुम्हें पता होगा कि अपन ये निकाल सकते हैं, वी कैन फाइंड दिस पॉइंट। तो अब आगे कैलकुलेशन आप सब लोग कर लेना, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बेसिकली मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये चीज ध्यान रखेंगे कि इसके अबाउट इसकी मिरर इमेज यहाँ पे लाई करेगी। तो हम ये बोल सकते हैं, हम ये पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, वी कैन फाइंड दिस पॉइंट ए डैश, वी कैन फाइंड दिस पॉइंट बी एंड वी कैन फाइंड इट्स इक्वेशन बीसी। अब इस क्वेश्चन में अगर तुम नोटिस करोगे, द ऑल्टीट्यूड का सिर्फ इतना यूज था, वी हैव टू फाइंड दिस पॉइंट बी। इसके अलावा ऑल्टीट्यूड का कोई एक्स्ट्रा यूज नहीं था। तो ये जो 90 डिग्री एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अपने को क्वेश्चन में दी थी, बाकी अपने को सिर्फ इसकी इक्वेशन निकालनी है, तो हम इसकी इक्वेशन ऐसे डायरेक्टली निकाल सकते हैं। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर एंगल बाइसेक्टर कि एंगल बाइसेक्टर में दैट इज द एक लाइन का जो पॉइंट अगर हम लेते हैं उसके ऊपर कोई भी पॉइंट, एंड इफ यू फाइंड द मिरर इमेज ऑफ दैट पॉइंट इन द एंगल बाइसेक्टर, इट विल लाई ऑन द सेकंड लाइन। तो ट्रायंगल में इस तरह से उसका यूज आ सकता है। तो कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में एंगल बाइसेक्टर है और मोस्टली रोम्बस का डायग्राम है और तुम्हें इस तरह का कुछ दिख रहा है कि अगर मैं एक वर्टेक्स दिया, सेम क्वेश्चन में रोम्बस में भी बना सकता हूं, दिस इज द डायगोनल ऑफ रोम्बस, और मैं यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर देता हूं ऐसे। सेम थिंग आई कैन डू हियर आल्सो कि मैंने एक डायगोनल बनाई, उसके अंदर एक एंगल बाइसेक्टर बनाया, या फिर ये डायगोनल है, सो दिस विल बी द एंगल बाइसेक्टर एंड आई मेड ए ट्रायंगल समथिंग लाइक दिस। वो थर्ड डायगोनल से मैंने एक ट्रायंगल बना लिया, तो उसकी मिरर इमेज वहां लाई करेगी। इस तरह की कंडीशंस अपन अप्लाई कर सकते हैं कि जैसे सपोज मैं एक रोम्बस बना लेता हूँ, तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एंगल बाइसेक्टर की। तो यहाँ पे ये देखो, ये अपनी डायगोनल है, सो दिस इज द एंगल बाइसेक्टर। अगर सपोज मैं एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ, दूसरा वाला, ये वाला, तो इस तरह की चीजें अपन यूज कर सकते हैं। अगर सपोज अपने को डायगोनल की इक्वेशन पता है, वी नो दिस इज एंगल बाइसेक्टर, एंड इफ वी नो दिस पॉइंट हियर, तो अपने को पता है कि इसकी अगर अपन मिरर इमेज निकालेंगे अबाउट डायगोनल, दैट विल लाई ऑन द अपोजिट साइड। तो ये अगर ए है, दिस इज बी सी डी, सो हियर इट विल बी ए डैश। तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन है रोम्बस में, वी नो द डायगोनल, we know one of the vertex, we can find one point on this opposite side। और क्वेश्चन में कुछ और भी दिया होता है, उसके हिसाब से हम कंडीशन लगा सकते हैं। सो दिस बिकम्स एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वहां पे भी। तो इस तरह से क्वेश्चन रोम्बस में भी बनाया जा सकता है। ट्रायंगल बाइसेक्टर में यही चीज इंपॉर्टेंट रहती है, जितना मेरे को आइडिया है। अगर ट्रायंगल या रोम्बस या क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड अगर क्वेश्चन बनाते हैं तो ये सबको क्लियर है। इसके अलावा मोस्टली एंगल बाइसेक्टर का कहाँ यूज आता है, रिफ्लेक्शन के जो बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं, दैट एक इंसिडेंट रे होती है, देयर इज ए रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज द नॉर्मल। तो ये अपना नॉर्मल है, दिस इज योर मिरर, ओके, एंड दीज आर एंगल बाइसेक्टर्स। तो हम ये बोल सकते हैं दिस इज इंसिडेंट, दिस इज रिफ्लेक्टेड। तो हम ये बोल सकते हैं जो इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे, दे आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ बिटवीन नॉर्मल एंड मिरर। बेसिकली नॉर्मल विल बी द एंड मिरर, दिस विल बी द एंगल बाइसेक्टर, बिकॉज यहाँ पे एंगल थीटा होगा, यहाँ पे भी एंगल थीटा होगा, इसके एंगल बाइसेक्टर ये हैं। तो यहाँ पे भी अपन ये चीज बोल सकते हैं ना, इफ दीज आर एंगल बाइसेक्टर, इफ यू नो ए पॉइंट ऑन इंसिडेंट रे एंड इफ यू विल फाइंड इट्स रिफ्लेक्शन अबाउट नॉर्मल, दैट विल लाई ऑन द रिफ्लेक्टेड रे। इट्स अ प्रॉपर्टी जो अपन यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं कि अगर इसका अपन रिफ्लेक्शन लेंगे इसके अबाउट, तो ये इस पे लाई करेगा, तो वो वहां पे भी यूज आ सकती है। रिफ्लेक्शन वाले क्वेश्चंस में, इस तरह के क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन का यूज कर सकते हो। अब इसमें एक और चीज ध्यान रखना, रिफ्लेक्शन में इफ ए क्वेश्चन इज मेड जिसमें पॉइंट दिया हुआ है कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर, ऑन एक्स एक्सिस और ऑन वाई एक्सिस और समथिंग लाइक दैट, तो वैसे केसेस में ऑलवेज लुक फॉर द स्लोप, जो मैंने बताया था स्टैंडर्ड स्लोप, वो तो आपको हमेशा ही चेक करना है, लाइक 30 45 60 ऑलवेज हैव टू चेक। और उसके केस में इट्स बेटर टू मेक कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड सॉल्व, क्योंकि उससे इजीली सॉल्व हो जाता है। 90 डिग्री का ट्रायंगल बन जाता है, जैसे यहाँ पे अपन बना सकते हैं, जो भी अगर सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, तो अपन इस तरह का 90 डिग्री का ट्रायंगल और हम ये एंगल्स इजीली डिफाइन कर सकते हैं, इट बिकम्स इजियर टू सॉल्व। तो ये प्रॉपर्टी वहां पे भी यूज आ सकती है एंगल बाइसेक्टर की। इसीलिए एंगल बाइसेक्टर का इंपॉर्टेंस होता है, द इंपॉर्टेंस इज नॉट रिलेटेड टू एक्यूट और ऑब्ट्यूज, इट इज मोस्टली रिलेटेड टू दीस काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अभी तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो मेरे से, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। So see, next part is pair of straight lines through origin. The pair of straight lines actually में this is not actually in the syllabus of JEE Advanced. Mostly इस पे आज तक कभी भी JEE Advanced में directly question एक ही बार आया है. What I mean is I will explain.
पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं मोस्टली, ये कॉन्सेप्ट बिट सेट, ये जो बाकी एग्जाम होते हैं एमएससीटी या फिर एमसेट, उन सब पेपर्स में डायरेक्टली इसके क्वेश्चंस आते हैं, बट जेईई एडवांस में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आते। कहने का मतलब क्या, देखो। हाँ शशांक बोलो। Good morning, sir. या श्रेयांश बोलो। Sir, please can you show me the previous slide, sir? जस्ट अ मिनट, या हियर इट इज। हाँ सर, यहाँ पे हम लोग इंटरसेक्शन फॉर्मूला से भी पॉइंट्स ही निकाल सकते हैं ना सर, उसके बाद सॉल्व कर सकते हैं। इंटरसेक्शन, हाँ वैसे भी कर सकते हैं ना हम। इसकी इक्वेशन निकाल लेंगे तो ये पॉइंट कैसे आएगा? I mean सर, हम लोग AC की we can find the equation of AC because we know the Yes, sir. slope, this is perpendicular, we can find its equation because we know the point, वो सही है, बट अपने को C नहीं निकालना है, we have to find equation of BC। यस सर, अगर C आ गया तो हम लोग ऑलरेडी पॉइंट B निकाल सकते हैं, क्योंकि एल्टीट्यूड और बाइसेक्टर पता है, तो B और C दो पॉइंट आ गया, तो हम लोग उससे स्लोप भी निकाल सकते हैं और लाइन भी सर। बट हाउ वी विल फाइंड पॉइंट C? सर पॉइंट C सर इंटरसेक्शन फॉर्मूला सर 1:1 में डिवाइड हो रहा है, तो हम लोग को ऑलरेडी AC का इक्वेशन पता है। व्हाट इज 1:1? सर एंगल बाइसेक्टर है सर, लेंथ इक्वल होगा ना सर, बिकॉज no, that is median, don't confuse angle bisector with median। median is the जो अपोजिट साइड का मिड पॉइंट होता है, एंगल बाइसेक्टर इज बेसिकली दिस। एंगल बाइसेक्टर में वी स्टडी दिस रेशियो ना, दैट इफ दिस इज side B, side C length, then this ratio is B is to C, here ratio is B is to C, it's not 1:1। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, थोड़ा और सोचना, हो सकता है कि और भी किसी तरह से सॉल्व हो जाएगा। और किसी ने कुछ पूछा है? ओके जी सर, थैंक यू सर। या रवि सर आपने जो रोम्बस में ए का मिरर इमेज दिया सर, वो तो डायरेक्टली दिख रहा मुझे कि ए का मिरर इमेज सी बन रहा कि वो परपेंडिकुलर। हाँ सी है। ओके सॉरी, मैंने बेसिकली मैं सोच रहा था क्योंकि हाँ इसीलिए वो वहां पे दिया नहीं होता। सही बात है, वो सी है ही। ठीक है, सही है, ये ए का मिरर इमेज सी ही है। सही बात है, ये यहाँ नहीं बनाना चाहिए क्योंकि वो 90 डिग्री यहाँ पे है ही, तो यही तो है मिरर इमेज। हाँ, तो अब हम यहाँ पे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन डिस्कस करते हैं। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इज नॉट ए डायरेक्ट कॉन्सेप्ट इन जेईई एडवांस। Basically pair of straight lines through origin becomes important. Why it becomes important? Because this kind of equation, ax square plus 2hxy plus by square equal to 0, this type of equation it has come in JEE Advanced। एडवांस में इस वाले क्वेश्चंस पूछे हैं। कैसे पूछे हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे सपोज द इक्वेशन कैन बी रिटन लाइक दिस, x square minus 5xy plus 6y square equal to 0। If this is the equation given in advance, like these are two lines represented by this equation। तो अब जब अपन इस क्वेश्चन को देखते हैं तो यू ऑलवेज हैव टू चेक, अगर जेईई एडवांस में क्वेश्चन आता है, इफ इट इज अ क्वेश्चन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, दोज विल बी ऑलमोस्ट फैक्टराइजेबल इक्वेशंस, मोस्टली दे विल बी फैक्टराइजेबल। ये हमेशा फैक्टराइजेबल फॉर्म में ही होंगी। तो अगर तुम इसके फैक्टर करोगे दैट विल बी x - 2y x - 3y का प्रोडक्ट इक्वल टू 0। दे विल बी फैक्टराइजेबल अगर एडवांस में क्वेश्चन आता है। मैंने जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन देखे, इवन जेईई मेंस में भी जो क्वेश्चन आए हैं जिसमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का कांसेप्ट वो यूज करते हैं, दे आर मोस्टली फैक्टराइजेबल इक्वेशंस एंड दे मोस्टली आस्क इक्वेशंस जो ओरिजिन से पास करती है। तो बेसिकली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का जो क्वेश्चन है या कॉन्सेप्ट है, इतना ही अपने सिलेबस में, देयर इज नथिंग एल्स इन सिलेबस। बट इससे रिलेटेड मैं कुछ आपको बता देता हूं कि कैसे हम लिखते हैं इक्वेशंस, कैसे नहीं लिखते हैं। बिकॉज थोड़ा बहुत अगर आपको आइडिया रहेगा तो क्वेश्चन आगे मैं एक चीज बताऊंगा, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसके नेक्स्ट वाला है, वो इससे रिलेटेड है, उस पर क्वेश्चन बनाया जा सकता है। उस पर एक बार सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया। सो द कॉन्सेप्ट इज दिस वन। तो यहाँ पे इफ देयर आर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो इक्वेशन हमने लिख ली y = m1x, y = m2x। तो अब यहाँ पे हम वी कैन फॉर्म ए इक्वेशन बिटवीन m1 एंड m2। तो अब हम यहाँ पे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस को कैसे लिखते हैं, वी जस्ट मल्टीप्लाई बोथ द लाइंस और इक्वेट टू 0। ये सबको पता होगा, आइडिया होगा। अब यहाँ पे एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, तो अगर एडवांस में क्वेश्चन आता है तो वो जो दोनों लाइंस हैं, दोज लाइंस कैन बी फैक्टराइजेबल, तो यू कैन इजीली फाइंड एंगल, बिकॉज अगर आपको दोनों इक्वेशंस मिल जाएगी, यू कैन डायरेक्टली यूज द फार्मूला m1 - m2 upon 1 + m1 m2। इफ द लाइंस आर नॉट फैक्टराइजेबल, यू कैन इजीली सॉल्व आल्सो। आई विल टेल यू द मेथड कि जो भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी हुई होती है, जैसे यहाँ पे दी हुई है, तो see y/x if I will do, it has two values, it has either m1 or it either has values 2। there are two values of y/x। तो अगर मैं यहाँ पे y/x में एक क्वाड्रेटिक बना लेता हूँ, इस क्वाड्रेटिक के कितने रूट्स होंगे, there will be 2 roots। that is the way to solve this question, m1 and m2। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको x स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। if you will divide both sides by x square, it will be y/x का स्क्वायर, y/x and it will become equation bm² + 2hm + a = 0। और इस इक्वेशन के यहाँ पे दो रूट्स होंगे m1 और m2।
अब इसके बाद में अगर तुम्हें निकालना है एंगल बिटवीन लाइंस, तो tan थीटा विल बी m1 minus m2 upon mod of m1 plus m2. तो यहाँ से तुम m1 plus m2 और m1 m2 डिफाइन कर सकते हो, एंड इफ यू फाइंड द फॉर्मूला इट विल बी 2 under root x square minus ab upon a plus b. इस फॉर्मूले को तुम चाहो तो याद कर लो, नहीं चाहोगे याद करना तो भी यू शुड नो द मेथड दैट यू हैव टू क्रिएट y by x एंड यू हैव टू क्रिएट द इक्वेशन इन स्लोप. फिर स्लोप में जो क्वाड्रेटिक बन गई, इफ यू कैन फाइंड द सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यू कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चन. तो ये है इसका बेसिक, जिससे हम एंगल बिटवीन लाइंस का फॉर्मूला निकालते हैं. अब परपेंडिकुलर लाइंस की कंडीशन है, इसी पे हम आगे एक क्वेश्चन देखेंगे. इट बिकम्स इंपॉर्टेंट इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर. इट मींस अगर थीटा की वैल्यू कितनी है, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री. इफ थीटा इज 90, tan 90 इज नॉट डिफाइंड, दैट इज 1 upon 0. तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इट मींस a plus b equal to 0. तो अभी हम इसी के कॉन्सेप्ट के ऊपर आगे क्वेश्चन देखेंगे, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजेनाइजेशन. तो ये होती है पेयर ऑफ लाइंस, पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस थ्रू ओरिजिन, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई दे आर वेरी इंपॉर्टेंट? बिकॉज मैं भी आगे आपको बताऊंगा. जैसे देखो, पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस की मैं बात करता हूं थ्रू ओरिजिन, so they will be something like this, one line here, तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि अगर इन दोनों लाइंस के ऊपर अगर अपन इफ वी टेक एनी पॉइंट, so we can always define a circle whose diameter will be end points of these. अगर यहाँ 90 है, so this will be the diametrical end points of the circle. अब मैं diametrical end points की और भी क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा, and it's very important diagram. मैंने आपको पहले भी बताया था प्रीवियस क्लास में, एक जो ये 90 डिग्री का ट्रायंगल होता है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रायंगल देयर पॉसिबल एक्सेप्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो 90 डिग्री का ट्रायंगल हमने कहाँ देखा था? यहाँ देखा था जब अपन ने ये बनाया था, ये वाला कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ 90 डिग्री का ट्रायंगल, जिसमें अपन ने एक इक्वेशन भी देखी थी, दैट इज द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर फॉर्म x cos alpha plus y sin alpha equal to p. दैट इज इंपॉर्टेंट. सो 90 डिग्री ट्रायंगल इफ यू सी एनीवेयर इन एनी क्वेश्चन यू हैव टू थिंक अबाउट दिस, एंड इफ इट इज समथिंग रिलेटेड टू सर्कल यू ऑलवेज हैव टू थिंक सर्कल इन डायमेट्रिकल फॉर्म, ऑलवेज. तो हमेशा दिमाग में ये रहना चाहिए, दैट इज सर्कल इन डायमीटर फॉर्म. यू ऑलवेज हैव टू कीप दिस इन माइंड. तो ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है. सो दीज आर पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन व्हिच आर कंटेनिंग ए 90 डिग्री एंगल. तो अगर मैं इफ आई विल टेक एनी 2 पॉइंट्स ऑन दीस 2 लाइंस एंड इफ आई विल जॉइन देम, दैट विल बी द एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर ऑफ दिस सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन. दिस इज व्हाट वी कैन सी. कैसे करेंगे क्वेश्चन में आगे देखेंगे, इसीलिए मैं ये कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ. नहीं तो मोस्टली अगर जे एडवांस में अगर कोई भी पेयर ऑफ लाइंस का क्वेश्चन आता है, दोस टू आर मोस्टली फैक्टराइजेबल इक्वेशंस. नेक्स्ट इज पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस विल बी h square equal to ab. So this is the condition of parallel lines. तो ये हमने यहाँ पे लिख ली है. Next is angle bisector between the lines. तो अगर हम एंगल बाइसेक्टर डिफाइन करेंगे, दिस विल बी द एंगल बाइसेक्टर बिटवीन द लाइंस. तो एंगल बाइसेक्टर अभी अपन ने देखा था. तो अगर आपको एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है, तो अपन ऑलरेडी देख चुके हैं एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन अपन कैसे निकालते हैं. सो इफ द इक्वेशंस विल बी फैक्टराइजेबल लाइक y equal to m1x, y equal to m2x, you can easily find the equation directly using the formula. अगर नहीं निकाल सकते हैं तो भी मैं एक बता देता हूँ, बिकॉज ओरिजिन से पास होने वाले के लिए थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए. तो एंगल बाइसेक्टर हम कैसे निकालते हैं? एंगल विद एक्स एक्सिस इज अल्फा. तो ये अपना एंगल बाइसेक्टर है. सपोज दिस इज द एंगल विद एक्स एक्सिस अल्फा. सो व्हाट वी अप्लाई कंडीशन बेसिकली, दिस एंगल इज अल्फा. ओके, सो व्हाट विल बी द दिस एंगल, एंड तो अब हम ये एंगल कैसे करते हैं डिफाइन? देखो, दिस एंगल इफ आई विल डिफाइन एज थीटा 1, दिस एंगल इफ आई विल डिफाइन एज theta 2. I can define alpha in terms of theta 1 and theta 2, something like this. 2 alpha is equal to theta 1 plus theta 2. How we will define it? Because this is theta 1, this is alpha, so this angle will become theta 1 minus alpha. Okay, or this is the angle theta 1 minus alpha. Just a minute, alpha, and this angle will become theta 2 minus alpha, right? नहीं, alpha minus theta 2. This will become alpha minus theta 2. Because now this is the angle bisector, so these two angles will be equal. तो अगर तुम इक्वेट करोगे 2 alpha will come out to be theta 1 plus theta 2. ऐसे हम यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालते हैं, taking tan both the sides. Tan 2 alpha is 2 tan alpha upon 1 minus tan square alpha, and this is nothing but m1 plus m2 upon 1 minus m1 m2. तो अपन इस तरह से यहाँ पे इक्वेशन निकाल लेते हैं. m1 plus m2 we already know what is the, just we have to put the values here, and tan alpha will be equal to y by x.
because if this equation is y equal to tan alpha times x, तो tan alpha will be y by x. You just have to put the values here y by x and you have to solve, तो तुम्हें यहाँ पे ये इक्वेशन मिल जाएगी. तो ये सिर्फ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है, इसमें मोस्टली क्वेश्चन नहीं आता है. मोस्टली द क्वेश्चन इट विल कम इन एडवांस, इट विल बी मोस्टली फैक्टराइजेबल इक्वेशंस. एंड नाउ वी विल डिस्कस दिस कॉन्सेप्ट. दिस इज इंपॉर्टेंट, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस थ्रू ओरिजिन एट 90 डिग्री. तो जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजेनाइजेशन ए कर्व विद ए लाइन. ऑलवेज रिमेंबर द कर्व कैन बी एनीथिंग. The curve can be a parabola, it can be a circle, it can be a ellipse, it can be a hyperbola. These are the four curves जो अपन पढ़ते हैं, that is conic sections में. तो मोस्टली ये वाले कर्व्स में से कोई भी कर्व हो सकता है. और इस तरह का एक छोटा क्वेश्चन एग्जाम में बना सकते हैं. सपोज अपन एक पैराबोला लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिया, दिस इज अ कर्व, दिस इज नथिंग बट ए सर्कल. तो मैंने क्या किया है, लिखा हुआ है द लाइन जॉइनिंग ओरिजिन टू द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दिस कर्व एंड दिस लाइन. तो अब कर्व कैन बी एनीथिंग and there is one line, and these two are intersecting at 2 points. Okay, and there is something called origin. एक जगह point है origin, and if you will draw these two lines from joining origin to this point, so here the angle will be 90 degree. So this is the condition. So this is nothing but pair of straight line passing through origin at an angle of 90 degree. तो अब हम यहाँ पे यही करेंगे. तो ये जो भी अपने को कर्व दिया होता है और ये जो अपने को लाइन दी हुई होती है, from these two we directly write the equation of pair of straight line through origin. उसी को डायरेक्टली लिखने का जो मेथड है that is the called method of homogenization. This is homogenization. तो मेथड क्या बोलता है कि pair of straight line through origin जो होगी उनकी इक्वेशन कैसे दिखेगी, दैट इक्वेशन विल बी समथिंग लाइक दैट, ax square plus 2hxy plus by square. So it will be a 2 degree equation. There won't be any constant term, there won't be any x term, there won't be any y term. It will be just a 2 degree homogeneous equation. तो अब हम क्या करते हैं, इस लाइन को इस कर्व के साथ सॉल्व करके एक इक्वेशन लिखते हैं. तो कैसे लिखते हैं अपन, होमोजेनाइज कैसे करते हैं, वी स्टार्ट विद द इक्वेशन ऑफ लाइन, व्हाटएवर बी द इक्वेशन ऑफ लाइन. तो यहाँ पे मैंने लिखा x plus y equal to 1. द इक्वेशन ऑफ लाइन कैन बी एनीथिंग, समथिंग लाइक suppose the equation of line is ax plus by plus c equal to 0. This is the equation of line. So what we do is कि equation of line से हम क्या करते हैं, we find the value of 1. इसकी वैल्यू निकालते हैं, 1 की वैल्यू निकालते हैं. वैल्यू ऑफ 1 का क्या मतलब है, देखो हम क्या करते हैं इसके लिए, we take the constant to the other side and we divide by that constant. So here the value of 1 will be ax plus by upon minus c. This is the method which we use to solve the question कि हम यहाँ पे ये जो 1 है इसकी वैल्यू निकालते हैं. इसकी 1 की वैल्यू क्या होगी, अब इसमें क्योंकि कांस्टेंट ऑलरेडी 1 है तो 1 इज नथिंग बट x plus y, वो यहाँ पे ये लिखेंगे, देयर इज नो डिवीजन. वी फाइंड दिस वैल्यू एंड यूजिंग दिस वी होमोजेनाइज द इक्वेशन ऑफ कर्व. तो हम होमोजेनाइज कैसे करते हैं इक्वेशन ऑफ कर्व, तो इन इक्वेशन ऑफ कर्व यू विल सी फर्स्ट पार्ट इज x square, दिस इज ऑलरेडी व्हाट वी नीड. सेकंड पार्ट इज y square, वी आल्सो नीड y square, बट वी डोंट नीड x. So what I do is I will write it x as x multiplied by 1. And y also we don't need, we write it as y multiplied by 1. अब यहाँ पे ये जो 1 है इसकी वैल्यू मैं पुट करूंगा x plus y. This is the value which I will put here. तो इससे क्या होगा, for just forget about the constant term for a time. तो अब अपन यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, it will generate x square, it will generate xy. So it will generate two terms. One is of xy, one is of x square, which we need. तो अब अपने यहाँ पे x square, y square और xy की टर्म आ जाएगी, इसीलिए यहाँ पे 1 लिखेंगे इस तरह से. And here the constant term we will write 1 square, because 1 लिखने से फायदा नहीं होगा, 1 लिखेंगे तो it will generate x and y, which we don't need. We need 2 degree terms of x and y. That is why I do x plus y का whole square. तो अब ऐसा करने से क्या होगा, एक 2 डिग्री की इक्वेशन बनेगी होमोजेनियस. There will be coefficient of x square, there will be coefficient of y square, there will be x y term. This is the equation you have to form, and this will represent pair of straight line through origin. So this is the concept of homogenization of a curve with a line, that we change the equation of curve into homogeneous form. Homogeneous is this form of degree 2, and that will represent a pair of straight line through origin, because that is what we have studied. तो ये उसको represent करेगा. अब इसमें जब भी यहाँ 90 डिग्री एंगल होगा, we can say what, we can say coefficient of x square plus coefficient of y square equal to 0. क्योंकि 90 डिग्री के लिए क्या कंडीशन होती है, राइट एंगल के लिए क्या होता है, a plus b equal to 0. So this is the condition you have to apply. तो अब अगर अपन यहाँ पे लगाएंगे तो x square और y square के कोफिशिएंट का सम इक्वल टू 0 करेंगे तो उससे आपको m की वैल्यू मिल जाएगी. This is how you solve the question.
दिस इज व्हाट वी कैन से। तो इस तरह से हम वो इक्वेशंस यहाँ पे कर सकते हैं फाइंड, ऐसे अपन निकाल सकते हैं। तो यहां तक सबको क्लियर है। अब यहाँ पे इस केस में तो क्या है, क्वेश्चन में द कर्व इज नथिंग बट द सर्कल, तो सर्कल है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे इट कैन बी पैराबोलिक कर्व आल्सो, y स्क्वायर इक्वल टू 4x टाइप्स, वैसा भी हो सकता है। और यहाँ पे कोई क्वेश्चन ऐसा भी बनाया जा सकता है कि जहां पे ये कट कर रहा है, ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे 90 डिग्री है, यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल, समथिंग लाइक दिस कैन आल्सो बी मेड, ऐसा भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, फर्स्ट वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ m, यहाँ से अपन ऐसे m निकाल सकते हैं। तो ये सर्कल अपने को पता चल जाएगा, वी कैन फाइंड दिस लाइन इंटरसेक्शन पॉइंट विद द सर्कल। आई विल आल्सो टेल यू कि ये कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है फॉर दीज टू कर्व्स। कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन हम आगे देखेंगे सर्कल्स के लिए, बट इट कैन बी मिक्स्ड विद दैट, तो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कुछ चीजें यहाँ पे समझने वाली, होमोजेनाइजेशन इक्वेशन, कर्व विद अ लाइन एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो इसमें सिर्फ इतना ही है, देयर इज नथिंग एल्स, दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, लाइक दिस इज द कांसेप्ट। किसी को कोई डाउट है, एनीबॉडी हैज एनी डाउट जस्ट टेल मी, नहीं तो फिर अपन आगे चलते हैं। तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सर्कल इन डायमीटर फॉर्म। तो दिस इज व्हाट आई वाज डिस्कसिंग, द राइट एंगल ट्रायंगल इनसाइड द सर्कल। तो ये जो 90 डिग्री का ट्रायंगल है इनसाइड द सर्कल, दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इफ एनी क्वेश्चन इज फ्रेम्ड ऑन दिस 90 डिग्री ट्रायंगल एंड इफ इट इज रिलेटेड टू सर्कल समवॉट, तो यू ऑलवेज हैव टू थिंक ये डायमीटर के एंड पॉइंट से रिलेटेड कुछ बात कर रहा है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन है सर्कल का जिसमें 90 डिग्री का ट्रायंगल फॉर्म है कहीं पे भी, तो यू ऑलवेज हैव टू थिंक अबाउट दिस सर्कल, यू ऑलवेज हैव टू कीप दिस इन माइंड। सर्कल इन डायमीट्रिकल फॉर्म ऐसा नहीं है कि अगर हमें डायमीटर के एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं देन यू हैव टू राइट दिस इक्वेशन, यू ऑलवेज हैव टू थिंक अदरवाइज आल्सो, कि अगर कोई भी सर्कल का क्वेश्चन है एंड इफ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन किसी ना किसी तरह से, इफ देयर इज अ राइट ट्रायंगल फॉर्मिंग, तो यू कैन थिंक अबाउट फॉर्मिंग a new circle passing through these endpoints. Equation of circle in diametrical form is written as product of slopes is -1, ये आपको पता होगा, x minus x1 x minus x2 plus y minus y1 y minus y2 equal to 0. तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1 से इक्वेशन आती है, दिस इज एडिशन ऑफ टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इन x एंड क्वाड्रेटिक इन y. If you add these two quadratic, always have to keep this in mind. Coefficient of x square must be equal to coefficient of y square. जब तुम इसको ऐड करोगे तो उसके बाद में आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल जाएगी एंड पॉइंट्स पे। तो बेसिकली अब यहाँ पे देखो, तो ये है क्वाड्रेटिक इन x जिसके रूट्स हैं x1 एंड x2, जो डायमीटर के एंड पॉइंट्स के एब्सिसा को रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन y जिसके रूट्स हैं y1 और y2 एंड दीज आर द ऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर। हम ये भी बोलते हैं कि इफ इक्वेशन ऑफ सर्कल वी हैव टू फाइंड पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स हैविंग लीस्ट रेडियस और पेरीमीटर। तो लीस्ट रेडियस का सर्कल वही होगा फॉर व्हिच दिस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, बिकॉज़ फॉर एनी टू पॉइंट्स इफ दिस इज नॉट द डायमीटर the circle radius will be bigger, because if this is a chord so it will be like this, the circle radius will be bigger than this value of half, तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ रेडियस विल बी जब यहाँ पे दिस chord will be same as diameter। तो अब यहाँ पे देखो, इसमें इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, सेम चीज जैसे मैंने अभी आपको बताई, सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन दिस chord of the parabola is diameter। तो यहाँ पे दिस इज सिमिलर टू होमोजेनाइजेशन, समथिंग लाइक दैट, कि इसमें यहाँ पे क्या किया है, एक पैराबोला है, this chord is cutting this parabola at 2 points, okay, and we have to find the equation of circle through these end points as diameter। तो अगर ऐसे निकालें, it could be any curve, always remember it could be circle, it could be a parabola, it could be ellipse, it could be hyperbola। तो एक तरीका तो क्या हो सकता है, you can solve this equation of line with the curve and find x coordinate of end points, then you can find the y coordinate of end points, then you can write the equation like this, x1 x2 y1 y2 पता है तो इक्वेशन लिख सकते हैं। बट हमें इक्वेशन लिखने के लिए we don't have to find end points, we just have to make two quadratic। first what I will do is I will write y equal to 3 minus x and I will make a quadratic in x, so this will be the first quadratic, 3 minus x का whole square equal to 4x, whatever the curve is there we will make a quadratic in x। फिर उसके बाद में हम बनाएंगे quadratic in y, वो वहां पे आएगा y square equal to 4x, x will be 3 minus y, so these two quadratic we will make। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, you have to just add these two quadratic, because this is the equation, we have to add these two quadratic, but while adding just keep in mind coefficient of x square should be coefficient of y square, because this is the condition of a 2 degree equation जो सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, ये हमेशा कंडीशन मैच करनी चाहिए, बस इस तरह से अपने को ऐड करना है। जो नई इक्वेशन आएगी दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल जिसके एंड पॉइंट्स के डायमीटर यहाँ पे ये होंगे। दिस इज हाउ यू राइट, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, ये आपको पता होगा, ये बस हमने एक बार इसको रिवाइज कर लिया, दिस इज इंपॉर्टेंट।
अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने दिया हुआ नेक्स्ट। द क्वेश्चन इज कि वन सर्कल हैज ए रेडियस ऑफ 5, इट्स सेंटर इज 0,5, तो मैंने ये बना लिया यहाँ पे, ये सेंटर है इसका, दैट इज 0,5, और रेडियस 5 है, तो ये ओरिजिन से पास करेगा। ऑलवेज रिमेंबर मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस क्यों बनाया क्वेश्चन में, बिकॉज सेंटर इज गिवन ऑन वाई एक्सिस। अगर कभी भी सेंटर वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे गिवन है, इट्स ऑलवेज बेटर टू मेक कोऑर्डिनेट एक्सिस डायग्राम। मैं सर्कल विद कोऑर्डिनेट एक्सिस बताऊंगा, जिसपे भी काफी क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। सेकंड सर्कल हैज रेडियस 12 एंड इट्स सेंटर इज 12,0। दिस इज योर सेकंड सर्कल, इसका सेंटर एक्स एक्सिस पे दिया हुआ है, रेडियस 12 है, सो इट विल पास थ्रू ओरिजिन, बिकॉज दिस इज 12, दिस इज 12, तो ये इसको ओरिजिन पे वाई एक्सिस को टच करेगा। The length of radius of a third circle which passes through the center of second circle and both point of intersection of first two circle. From this point, center of second circle, if there is a third circle जो इससे और इससे पास करता है, तो मैं अब यहां पे क्या करूंगा, अगर if I will join these two points, तो अब यहाँ पे दो सर्कल की बात हो रही है, तो इसको देखो दो तरह से अपन समझ सकते हैं। पहला तो तरीका क्या है कि इफ यू विल राइट द इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल, ये क्या आएगी, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, ऐसे आएगी इक्वेशन। तो यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y इक्वल टू 0। एंड इफ यू राइट द इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल, दिस विल कम आउट टू बी x माइनस 12 स्क्वायर एंड प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर। तो यहाँ पे इक्वेशन आएगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 24y इज इक्वल टू 0, ये वाली इक्वेशन आएगी 24x इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने वाली ये है कि अगर तुमने ऑर्थोगोनल सर्कल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, तो अभी मैं यहाँ पे वो डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बट ऑर्थोगोनल सर्कल्स की कंडीशन सबको बताऊंगी, 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इक्वल टू c1 प्लस c2। नहीं पता है तो आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो दोनों सर्कल्स होते हैं, कौन कौन से सर्कल, एक सर्कल हो गया अपना वन, जिसका एक्स एक्सिस पे सेंटर और ओरिजिन से पास कर रहा है, दैट इज दिस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x is equal to 0. And second circle, what I am talking about is this one. They are always orthogonal. X square plus y square plus 2f1y. They are always orthogonal. 2f2y, sorry. Because क्योंकि orthogonal circles की condition क्या होती है, 2g1 g2 plus 2f1 f2 is equal to c1 plus c2. For first circle, g1 is there, but f1 is 0. For second circle, f2 is there but g2 is 0 and c1 c2 तो दोनों केस में 0 ही है. So this will always satisfy. So you always remember this circle. These are very important circles that they are intersecting at this point and passing through origin. They will always be what? Orthogonal. So they will always intersect here at 90 degree. Orthogonal का मतलब होता है the two circles which is intersecting each other at angle of 90 degree. इसको अपन बोलते हैं ऑर्थोगोनल सर्कल्स। तो अब यहाँ पे जो थर्ड सर्कल की बात कर रही है, उसके लिए अपन ये बोल सकते हैं कि ऑर्थोगोनल सर्कल्स की कंडीशन होती है, यहाँ से पास करती है 90 डिग्री। तो इस पॉइंट पे अगर अपन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो यहाँ से पास करेगी, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेगी तो इसके सेंटर से करेगी पास। तो जो थर्ड सर्कल अपने को यहाँ पे निकालना है, जो बचा हुआ सर्कल जो अपने को निकालना है, दैट विल बी व्हाट, जो जिसके लिए एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर क्या होंगे, 0,5 एंड 12,0 एंड इट विल ऑल्सो पास थ्रू origin. This will be the circle. This will be the circle. ये वाला जो सर्कल है ये अपने को निकालना है। तो इस सर्कल के एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर क्या होंगे, 0,5 एंड 12,0। अब ये जो डायग्राम है मैं आगे भी कंटिन्यू करूंगा। अब अभी आपको लग रहा होगा कि सर आपको तो पता था कि ऑर्थोगोनल होते हैं, बट देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम जो मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, जो मैं अभी फिर से एक बार बता देता हूँ, वो आगे भी आएगा। दैट इज ऑफ दिस लाइन 90 डिग्री ट्रायंगल। मैंने तुम्हें ये वाला 90 डिग्री का ट्रायंगल बताया था, फॉर विच x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, ये मैंने बताया था सबको। अब नोटिस करो यहाँ पे एंगल कितना है, 90 डिग्री, राइट। तो ये पॉइंट दिख रहा है और ये पॉइंट दिख रहा है। इफ देयर इज अ पॉइंट ऑन x एक्सिस, देयर इज अ पॉइंट ऑन y एक्सिस, इफ यू विल जॉइन यू विल फॉर्म दिस ट्रायंगल दैट विल बी ऑफ 90 डिग्री। तो अब यहां से एक लाइन बनाई है और यहां से एक लाइन बनाई है, वो भी क्या है, 90 डिग्री है। तो वो लाइन एक्चुअली भी होनी ऐसी चाहिए कि अगर मैं इस तरह से अगर ये लाइन बनाता हूँ,
ये देखो यहाँ से मैंने लाइन बनाई, यहाँ से मैंने लाइन बनाई, मैं इसकी डायग्राम की बात कर रहा हूँ, नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, क्योंकि यहाँ पे इस केस में यहाँ 90 नहीं है और यहाँ 90 नहीं है, आई एम मेकिंग दिस डायग्राम, बट सिमिलर टाइप ऑफ डायग्राम। तो अब यहाँ पे नोटिस करो, ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, दिख रहा है सबको? तो इसके केस में क्या होगा, इसके केस में जो सर्कल यहां से पास करेगा उसके लिए डायमीटर यही वाली लाइन होगी। तो एक्चुअल में ये वाला डायग्राम जो है ये इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बनाया है यहाँ पे, एंड दिस इज द सेम डायग्राम। तो जैसे मुझे यहाँ पे 90 डिग्री दिखा, यहाँ पे ये 90 डिग्री होगा, ये तो अपन ने इससे पता करनी है, ये तुम्हें ध्यान रखना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, तुम यहाँ पे भी देख सकते हो कि ये जो सर्कल्स है, ये दिख रहा है, ये वाला सर्कल एंड ये वाला सर्कल, इनके लिए एक इंटरसेक्शन पॉइंट ओरिजिन भी है, एंड ओरिजिन पे इफ यू विल सी द टेंजेंट्स, दे आर आल्सो इंटरसेक्टिंग एट 90 डिग्री। तो यहाँ पे ऑर्थोगोनलिटी है, और अगर यहाँ पे ऑर्थोगोनलिटी है, यहाँ पे भी ऑर्थोगोनलिटी होगी, जिस तरह से अपने को यहाँ पे दिख रहा है। और ये जो है सर्कल, ये इस पॉइंट इस पॉइंट इस पॉइंट इस पॉइंट से पास करेगा, इट्स इंपॉर्टेंट, एंड दीज 4 पॉइंट्स आर कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स, दे आर ऑल लाइंग ऑन द सर्कल। हाँ रवि बताओ, क्या पूछ रहे थे आप? तो आपने ये कैसे फाइंड करी है, वो जो थर्ड सर्कल है वो 0,5 से जा रहा है? वही मैं आपको यहाँ बता रहा था, एक्चुअल में दीज 2 सर्कल्स आर इंपॉर्टेंट, ऑर्थोगोनल सर्कल्स। वन सर्कल इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, फॉर विच यहाँ पे क्या है, एक ओरिजिन से पास होने वाला सर्कल। तो ये मैं ऑर्थोगोनलिटी में भी डिस्कस करता हूँ, बट ये मैं डायमेट्रिकल फॉर्म में इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज क्योंकि 90 डिग्री से रिलेटेड है, ओके, और 90 डिग्री का ट्रायंगल अभी तक हम पढ़ रहे हैं, एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर सर्कल की इक्वेशन वी कैन राइट। तो यहाँ पे ये 2 सर्कल्स इंपॉर्टेंट है, एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर एक्स एक्सिस पे है और ये ओरिजिन से पास कर रहा है, दूसरे का सेंटर वाई एक्सिस पे, ये ओरिजिन से पास कर रहा है। दीस टू आर वेरी इंपॉर्टेंट सर्कल्स, दे ऑलवेज इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो यहाँ पे 90 डिग्री हमेशा होता है, यू कैन वेरीफाई फ्रॉम दिस ऑल्सो। तो ये एक्चुअली में ये चीज ध्यान रखने वाली है फॉर ऑर्थोगोनल सर्कल्स। ऑर्थोगोनल सर्कल्स में हम ये पढ़ते हैं, दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब अपन इसमें इफ यू विल टेक अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, यू टेक अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, एंड इफ यू विल जॉइन दिस, तो ये वाला जो सर्कल बनता है इससे पास होने वाला है, इसको भी मैं थोड़ी देर में आगे और भी डिस्कस करूंगा कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो 90 डिग्री का ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है, तो ये 90 डिग्री और ऑर्थोगोनल है, सो दिस इज द डायमीटर, बिकॉज डायमीटर का सर्कमफ्रेंस पे जो पॉइंट होता है वहां पे एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। सो आई नो इट इज पासिंग फ्रॉम दिस पॉइंट एंड इट इज पासिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। तो ये जो सर्कल है जिसपे ये दोनों पॉइंट है, इफ आई विल ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस, दैट विल बी द एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर एंड दैट विल बी दिस पॉइंट, बिकॉज वी कैन सी फ्रॉम दिस डायग्राम। तो ये डेफिनेटली यहाँ से पास करेगा, क्योंकि ऐसा हमेशा होगा ना, जैसे सपोज कोई मैं सर्कल बनाता हूँ, उसमें अगर 2 पॉइंट दिया है, सपोज दिस इज द पॉइंट एंड दिस इज द पॉइंट, इट इज पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स, ऐसे ही कुछ है यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स ज्वाइन करता हूँ, सो ओरिजिन भी गिवन है, वहां से भी पास कर बोल। नहीं, वो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ना, वो तो अपने को पता चला क्योंकि यहाँ पे भी 90 है तो ये भी डायमीटर होगी, तो इधर से भी पास करेगा, दिस इज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ये तो अपन ने यहाँ से निकाल लिया कि ये भी 90 डिग्री है, ये डायमीटर है, दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड फर्स्ट, ठीक है। तो उसके लिए अपने को ये देखना है कि क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है इट इज पासिंग फ्रॉम 12,0, इट इज नॉट रिटन कि वो 0,5 से पास करेगा, क्वेश्चन में सिर्फ ये लिखा हुआ है इट विल पास फ्रॉम दिस पॉइंट एंड इट विल पास फ्रॉम दिस पॉइंट, सो दीज 2 पॉइंट्स इट विल पास फ्रॉम। अब यहाँ पे क्या है, वी नो अबाउट दीज 2 सर्कल्स, दे ऑलवेज कट ऑर्थोगोनली। तो अगर ये ऑर्थोगोनली कट करते हैं, इट मींस अगर मैं यहाँ से ये ड्रॉ करूंगा, दैट विल बी द परपेंडिकुलर लाइन, तो ये इसके सेंटर से पास करती है। ऑर्थोगोनल की कंडीशंस आपको पता होगी कि एक सर्कल के लिए जो टेंजेंट होती है वो दूसरे के सेंटर से पास करती है, उसके लिए नॉर्मल होती है, और इसके लिए जो टेंजेंट होगी वो दूसरे के लिए नॉर्मल होगी, बिकॉज यहाँ 90 डिग्री है, 90 डिग्री पे अगर कोई भी लाइन सर्कल पे ड्रॉ करते हैं, दैट इज नॉर्मल टू द सर्कल दैट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल, एंड यहाँ पे भी 90 डिग्री है, इट विल पास थ्रू सेंटर ऑफ दिस सर्कल। तो मेरे को ये लाइन पता है इन दोनों पॉइंट से पास करती है, इसके परपेंडिकुलर मैंने लाइन ड्रॉ करी, मुझे पता है ये यहाँ पे ये इसको कट करेगी और इसको ज्वाइन करूंगा, दिस विल बी 90 डिग्री। तो अगर मुझे पता लग गया ये दोनों पॉइंट सर्कल पे हैं, दिस विल बी डेफिनेटली ऑन द सर्कल, बिकॉज दैट विल बिकम द डायमीटर ऑफ द सर्कल, क्योंकि अगर इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है तो उसका डायमीटर लाइन पॉइंट यही वाला होना चाहिए। ये सबको क्लियर है? ये ध्यान रखना, इट्स इंपॉर्टेंट डायग्राम, या ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं ना इस पे। ये सबको क्लियर है, समझ में आ गया? तो अभी अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चन, फ्रॉम 3,4 chords are drawn to the circle x square plus y square minus 4x equal to 0, locus of midpoint of chord is। तो 3,4 से chords बनाई गई हैं, मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। ऑलवेज रिमेंबर फॉर chords you always have to always draw 90 डिग्री फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, ये हमेशा बनाना है, हमेशा कॉर्ड के लिए। कभी भी कॉर्ड की मैं आगे और भी क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, जब इसमें कॉर्ड की लेंथ दी हुई होगी, इस तरह के क्वेश्चंस भी बनते हैं, बट इन दैट ऑलवेज यू हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। ये चीज अपने को हमेशा दिमाग में रखनी है, सेंटर ऑफ सर्कल से हमेशा परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, कोई भी कॉर्ड का क्वेश्चन हो, भले उसमें यूज आया या नहीं है। सिमिलरली इफ
it is given a line is tangent to the circle. Always draw from center of circle to the tangent point 90 degree. These two you always have to do. कुछ भी हो या नहीं हो ये आपको बनाना ही है. इसी से क्वेश्चन मोस्टली सॉल्व होता है because it is the property of circle. So if a chord is given, पहला मैं स्टेप हमेशा ही करूंगा कि यहां से मैं हमेशा इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा. क्वेश्चन में if it is given to find the chord मिड पॉइंट का लोकस और नॉट, इट डजंट मैटर. इस क्वेश्चन को अपन एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं. पहले तो मैं बना लेता हूं मिड पॉइंट ऑफ chord, दिस इज h, k. And if we know the equation of circle, we know this point also. This point is 2, 0. यही हो गया अपना यहाँ पे. तो अब अपने को यहाँ पे इसका मिड पॉइंट का लोकस निकालना है. So this will be dividing into 2 parts, equal parts. This will be the mid point. तो अब अपना क्या होगा, अब अपने को दिख रहा है this is perpendicular to this line. तो लोकस का बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा. जिस भी पॉइंट का लोकस निकालना होता है, we assume that point is equal to h, k, and you have to find the equation in terms of h and k. This question can be solved using equation of chord with midpoint. वो आप यूज कर सकते हो. That is method number 1 that you can use. But मैं वो यूज नहीं कर रहा हूँ अभी, उससे थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा ही होगी. इक्वेशन ऑफ chord with midpoint अगर तुम्हें पता होगी, if you have studied this, तो आपको पता होगी t equal to s1 इक्वेशन होती है. तो आप इसके लिए इक्वेशन ऑफ chord with midpoint लिख लेंगे h, k के टर्म्स में, and you will satisfy this point. एक बार ये लिखेंगे, it passes through 3, 4. You can find the locus. बट जो मेथड 2 है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं वो यूज करूंगा कि chord with midpoint है, तो मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, ये 90 डिग्री बनेगा. अब यहाँ 90 डिग्री मिल रहा है, एंड इफ आई सी द स्लोप्स आई कैन राइट द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स -1. So I can write k minus 0 upon h minus 2 का प्रोडक्ट विद k minus 4 upon h minus 3 equal to 0. सॉरी -1. तो यहाँ पे आपको मिलेगा दैट इज h minus 2 multiplied by h minus 3 plus k minus 0 multiplied by k minus 4 equal to 0. So the locus will be x minus 2 multiplied by x minus 3 plus y minus 0 multiplied by y minus 4 equal to 0. तो अब ये नोटिस करो, दिस इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ सर्कल विद एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर एज दिस वन. तो ये अपने को देख के देखो, जैसे ही 90 डिग्री का ट्रायंगल बनता है, इन तीनों पॉइंट से हमेशा एक सर्कल पास करेगा ऑलवेज. तो अपन देख के डायरेक्टली भी बोल सकते थे कि अगर एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर को लेते हुए अगर मैं एक सर्कल लिख लूंगा, तो इट विल रिप्रेजेंट दिस सर्कल, समथिंग लाइक दिस. तो 90 डिग्री का ट्रायंगल फॉर डायमीट्रिकल फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये हमेशा दिमाग में रखना है आपको. इसी से रिलेटेड इस टाइप से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं. अब यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो फिर हम आगे तो चलते हैं सर्कल एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस. Now in circle and coordinate axis, basically the conditions are there. Question में लिखा हुआ होगा, if a circle its center is on y axis, center is on x axis. If in question it is written like for any circle, if it is touching x axis at some point, is touching y axis at some point, I usually solve कैसे? I make the diagram of coordinate axis. मैं वैसे ही सॉल्व करता हूँ, बिना उसके भी आप कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, वो भी मैं बता देता हूँ. तो ये सर्कल की इक्वेशन होती है, सबको पता होगी. इसमें we define two terms, length of x intercept, length of y intercept. Length of x-intercept is distance between these two points where the circle cuts the x-axis. Length of y-intercept distance between these two points where the circle cuts the y-axis. So we define these two lengths. If in question कभी भी लिखा हुआ है a circle definitely cuts x-axis at 2 points, so we apply condition at x-axis at 2 points. तो inequality based question उस पर बना सकते हैं. We apply the condition that g square minus c is greater than 0. This should be the condition. और इस तरह का क्वेश्चन JEE एडवांस में आया भी है. नेक्स्ट मैं जो प्रैक्टिस सेट दूंगा उसमें आप सॉल्व करना, और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस भी करेंगे. लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट अगर 2 पॉइंट्स पे y एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, द कंडीशन इज x स्क्वायर माइनस c इज ग्रेटर देन 0. अगर 2 पॉइंट्स पे कट करता है, अगर एक भी पॉइंट पे कट नहीं करता है, दैट मींस इट इज लेस देन 0. दिस इज आल्सो लेस देन 0 बिकॉज़ देयर इज नो इंटरसेक्शन पॉइंट. एंड इफ इट टचेस द x एक्सिस एंड y एक्सिस, और इफ इट टचेस द x एक्सिस बट नॉट y एक्सिस, देन आल्सो वी कैन अप्लाई द कंडीशन. इफ इट टचेस x एक्सिस, देन अप्लाई द कंडीशन g स्क्वायर इक्वल टू c. अब अगर आप कंडीशन ऐसे लिखेंगे, देयर इज नो नीड टू मेक एनी डायग्राम, बट आई यूजुअली मेक डायग्राम. आई डोंट अप्लाई कंडीशंस लाइक दिस. आई मेक द डायग्राम. एंड हाउ वी अप्लाई द कंडीशन? इफ ए लाइन इज टचिंग द सर्कल, दैट इज ऑलवेज ए टेंजेंट टू द सर्कल. और मैंने आपको हमेशा बोला है, व्हाट यू हैव टू डू इज फॉर एनी टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर. You always have to do this. And if you will draw the perpendicular, this will be equal to radius. So we can define the y coordinate of center equal to radius. अब अगर आपने को इसकी इक्वेशन निकालनी, there are two variables h and r. So there will be two equations you have to solve. और अगर आप इस तरह से कंडीशन लगाएंगे तो ध्यान रखना, ये अपन ने कंडीशन लगाई है कि वो x एक्सिस को टच करती है, दैट इज g स्क्वायर इक्वल टू c.
इस तरह से आप कंडीशन लगा सकते हैं x इंटरसेप्ट इक्वल टू 0 और y एक्सिस टचिंग इट विल बी x स्क्वायर इक्वल टू c और आप डायग्राम इस तरह से बना सकते हैं कि y एक्सिस को टच करता है, x कोऑर्डिनेट विल बी रेडियस एंड y कोऑर्डिनेट विल बी k और अगर दोनों एक्सिस को टच करता है और x और y कोऑर्डिनेट क्या होंगे दैट विल बी प्लस r एंड माइनस r। इस तरह से आप यहाँ पे ये बना सकते हैं डायग्राम। तो ये हमारी यहाँ पे कंडीशंस हो गई सर्कल एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसके क्वेश्चन मोस्टली सिंपल ही होते हैं, मैं 2-3 क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस सेट में, आप क्वेश्चंस करिएगा। सिंपल क्वेश्चन बनाए जाते हैं, मैं मोस्टली डायग्राम बना के ही सॉल्व करता हूँ। अब इसमें आ जाते हैं हम अपने एक इंपॉर्टेंट डायग्राम के ऊपर। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, दिस इज स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो केवीपीवाई में आया हुआ है, मेरे ख्याल से जेईई एडवांस में भी शायद एक बार क्वेश्चन इस तरह का आया हुआ है। दैट इज दिस क्वेश्चन, टू rods whose lengths are 2a and 2b slides along the rectangular axis in such a way that extremities are always concyclic। तो ये दो रॉड हैं जो, अब ये ध्यान रखना, लोकस का कभी भी क्वेश्चन आता है, अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है रेक्टेंगुलर एक्सिस, यू कैन टेक कोऑर्डिनेट एक्सिस, बट इफ देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ लोकस in it is written something are perpendicular, you can always take those two perpendicular lines as x and y axis। क्वेश्चन में वो लिख देता है given perpendicular, you can always take them x axis and y axis, given मतलब you already know, you can always take, तो perpendicular lines you can take x axis and y axis until unless it is specifically mentioned they cannot be x axis and y axis, तो आप हमेशा ले सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आता है जैसे सपोज ए क्वेश्चन ऑफ रेक्टेंगल, क्वेश्चन में कुछ ऐसा लिखा हुआ है, एक स्क्वायर है, उसके अंदर एक सर्कल है, या एक स्क्वायर है, द सर्कल इज पासिंग थ्रू दीज टू पॉइंट्स, दैट इज दीज टू पॉइंट्स, इस तरह से कोई सर्कल है जो यहाँ से पास करता है और इस पॉइंट से पास करता है यहाँ से, ऐसा कोई सर्कल है, समथिंग लाइक दिस। उसमें हो सकता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करके नहीं दिया होगा, क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा एंड पॉइंट्स ऑफ सर्कल स्क्वायर इज समथिंग गिवन, ऐसा नहीं दिया होगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, कभी भी स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, तो आप स्क्वायर के एंड पॉइंट्स इस तरह से हमेशा मान सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। दैट इज वन पॉइंट इज ओरिजिन एंड इफ इट इज स्क्वायर दिस इज a, 0, दिस इज a, दिस इज 0, a। You can always assume this, you can even assume like this also, that this is coordinate axis, that I am assuming center of square as origin। तो हम ऐसा भी बना सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इट डिपेंड्स कि आप किस तरह से ओरिजिन लेते हो, क्योंकि जो भी ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन है दे कैन बी सॉल्व्ड यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बट जरूरी नहीं है क्वेश्चन में लिखा हो, तो हम यहाँ पे सेंटर अज्यूम करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं 0, 0। अब जैसे रोम्बस दिया हुआ है तो रोम्बस में आप इस तरह से डायग्राम ऑलवेज अज्यूम कर सकते हैं, दैट इज जैसे सपोज दिस इज द रोम्बस ना, रोम्बस में वी नो द डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, तो ये हम ले सकते हैं, वी कैन टेक द रोम्बस फिगर एज लाइक दिस, दिस इज द ओरिजिन, दिस इज द सेंटर, और जो भी रोम्बस की साइड्स दी हुई हैं, सपोज साइड इज A, so here angle is 45 degree, we can take this diagram, और जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है हम इस तरह से कोऑर्डिनेट्स अज्यूम करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो जो रेक्टेंगुलर एक्सिस है या गिवन परपेंडिकुलर लाइंस है वो कभी कभी लोकस के क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है। अगर लोकस के क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ, कोई और ज्योमेट्रिकल फिगर है, रोम्बस है, स्क्वायर है, ट्रायंगल, यू कैन ऑलवेज अज्यूम अ पॉइंट एज गिवन वर्टेक्स, कोई भी। अगर वर्टेक्स डिफाइंड नहीं है, जैसे सपोज ट्रायंगल में मोस्टली वर्टेक्स इज ऑलवेज डिफाइंड कि एक वर्टेक्स ये है, तो हम उसको वर्टेक्स लेके सॉल्व कर सकते हैं, बट उसके केस में फिर हम ओरिजिन नहीं मान सकते। बट इफ इट इज नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन की ओरिजिन कहाँ है, तो तुम कोई भी ओरिजिन मान के सॉल्व कर सकते हो। मोस्टली हम ओरिजिन या तो इसको मानते हैं एंड पॉइंट्स को, या सेंटर को मान लेते हैं, दैट इज द बेसिक आइडिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है टू रॉड्स whose lengths are 2a and 2b slides along the rectangular axis, तो ये रॉड्स हैं a, b और c, d, their extremities are always concyclic, find the equation of locus of center of circle। ये हमें निकालना है, इसके सेंटर का लोकस निकालना है। तो जैसे ही मुझे दिखा दैट इज रेक्टेंगुलर एक्सिस, मैंने बनाई कोऑर्डिनेट एक्सिस, एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग आई हैव टेकन लेंथ 2a एंड 2b, दिस इज द रॉड। तो अब ये रॉड्स स्लाइड कर रही हैं, तो ये रॉड नीचे आएगी, ये रॉड आगे जाएगी, और इन पॉइंट से पास होने वाले सर्कल के सेंटर का लोकस निकालना है। सो दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल। ओके, तो लोकस निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसका लूंगा परपेंडिकुलर। क्यों लूंगा परपेंडिकुलर? बिकॉज दिस इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। जब भी कॉर्ड है यू ऑलवेज हैव टू ड्रॉ फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, कॉर्ड पे परपेंडिकुलर हमेशा बनाना है। और यहाँ पे अगर मैं इस रॉड की बात करूंगा तो ये भी कॉर्ड है, यहाँ पे भी हम ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर। कॉर्ड की कभी भी लेंथ दी हुई होती है, यू ऑलवेज हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर एंड मेक ए 90 डिग्री ट्रायंगल। तो 90 डिग्री ट्रायंगल हम कैसे बनाते हैं, वी जॉइन द सेंटर ऑफ सर्कल टू द एंड पॉइंट ऑफ कॉर्ड, एंड दिस इज द 90 डिग्री ट्रायंगल यू ऑलवेज मेक। ये हमेशा ध्यान रखना, कॉर्ड में ये हमेशा आएगा। कैसा भी कोई सर्कल का डायग्राम अगर उसमें कैसे भी करके कॉर्ड बन रही है एंड समथिंग इज गिवन रिलेटेड टू लेंथ, लेंथ मींस radius of circle, length of chord, distance from this point to this point, anything something like this is written, anything is written जहां पे length mentioned है, coordinate नहीं mentioned है, तो you can always use this Pythagoras theorem।
यू कैन नहीं, यू विल ऑलवेज यूज दिस, बेसिकली इट विल बी ऑलवेज यूज, जितना मेरा ऑब्जर्वेशन है हमेशा ये 90 डिग्री का ट्रायंगल यूज में आता है। तो अब यहाँ पे इसको अगर अपन इससे ज्वाइन करेंगे तो एक 90 डिग्री का ट्रायंगल यहाँ बनेगा। तो अगर हम इसका सेंटर का लोकस निकालना है, दिस पॉइंट इज एच कॉमा के, so the easiest way to solve is we will apply Pythagoras theorem here and we will apply Pythagoras theorem here. So we know this length is nothing but a and this length is nothing but b. Pythagoras theorem लगाने के लिए we will have to assume the radius of circle as r, और अब अपने को ये लेंथ पता है यहां से लेकर के यहां, this length is nothing but k, so this is y coordinate, this length is nothing but h. तो अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो इक्वेशन विल बिकम h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, r स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और अगर अपन इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो इक्वेशन विल बी k स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। और जिसका अपने को लोकस निकालना है दैट विल बी h कॉमा k, तो वेरिएबल अपने को एलिमिनेट करना पड़ेगा दैट इज r स्क्वायर। तो r स्क्वायर की वैल्यू को अपन इक्वेट कर देंगे, तो r स्क्वायर की वैल्यू अपने कितनी है ऊपर से, k स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। So the equation will come out to be h square minus k square is equal to a square minus b square. Now this is nothing but a rectangular hyperbola, x square minus y square equal to a square minus b square. तो अब ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में इस तरह से आ सकता है एडवांस के पेपर में, बिकॉज़ दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप, लाइक दिस इज अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन ऐसे है एंड इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के आगे क्वेश्चन बना सकते हैं, कुछ भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल या समथिंग लाइक दैट, या कोई ट्रायंगल का एरिया, इस तरह से क्वेश्चन बनाया जा सकता है इस लोकस के ऊपर। तो एक तरीका ये है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज रिमेंबर इफ देयर इज अ कॉर्ड यू ऑलवेज हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ कॉर्ड, ड्रॉ परपेंडिकुलर एंड मेक दिस डायग्राम, यूज पाइथागोरस थ्योरम, ऑलवेज यू हैव टू यूज दिस। देयर इज वन मोर मेथड व्हिच वी कैन यूज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो जो मेथड नंबर 2 है वो आगे मैं आपसे डिस्कस करूंगा, दैट इज पावर ऑफ ए पॉइंट। इससे सॉल्व होगा क्या? सो डायरेक्ट इंटरसेप्ट फॉर्मूला से कर सकते हैं। किससे? इंटरसेप्ट फॉर्मूला से, इंटरसेप्ट फार्मूला से भी कर सकते हैं, तीसरा मेथड वो भी है, बट आई यूजुअली प्रेफर दिस डायग्राम ना टू सॉल्व द क्वेश्चन। तीसरा मेथड वो है इंटरसेप्ट, जो मैंने भी आपको बताया था, इंटरसेप्ट से भी कर सकते हैं अपन। इंटरसेप्ट वी नो 2a इज द इंटरसेप्ट, तो 2 अंडर रूट g स्क्वायर माइनस c वही होता है ना? यस, सो यू कैन यूज दिस आल्सो इज इक्वल टू 2a, 2 अंडर रूट x स्क्वायर माइनस c इज इक्वल टू 2b। और अगर आप यहाँ पे c एलिमिनेट करोगे इट विल बिकम g स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हैं, वो भी सही है। एंड g will be your minus g is h minus f is k, so the same equation you will get. पावर ऑफ ए पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर जेईई एडवांस, इस पे जेईई मेन में अभी तक एक दो क्वेश्चन ही आए हैं, बट दिस इज द कॉन्सेप्ट जो अपने को एग्जाम में जनरली दिखेगा नहीं कि अपने को ये अप्लाई करना है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आगे मैं डिस्कस करूंगा आपको, अभी मैं आपको थोड़ा आइडिया देता हूँ, यहाँ पे अपन अप्लाई कर सकते हैं। पावर ऑफ ए पॉइंट स्टेट्स कि अगर एक पॉइंट है सर्कल के अंदर और उस पॉइंट से अगर आपने दो कॉर्ड बनाई है, मोस्टली ये कॉन्सेप्ट यूज आता है लेंथ से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन होता है, जैसे ये पॉइंट है ए बी पे, एक कॉर्ड है मिल रही, एक सी डी पे है, पावर ऑफ ए पॉइंट स्टेट्स वी कैन राइट पीए मल्टीप्लाइड बाय पीबी इक्वल टू पीसी मल्टीप्लाइड बाय पीडी, ऐसा अपन हमेशा लिख सकते हैं, दिस इज पावर ऑफ ए पॉइंट, यू कैन ऑलवेज राइट दिस। दूसरा एक और पावर ऑफ पॉइंट का कॉन्सेप्ट अपन ऐसे लगाते हैं कि अगर एक सर्कल है उस पे एक्सटर्नल पॉइंट से अपन एक टेंजेंट ड्रॉ करी है और उस एक्सटर्नल पॉइंट से अपन ने एक सीकेंट या कॉर्ड ड्रॉ करी है ए बी लेंथ की, तो कंडीशन हम लगाते हैं पीए मल्टीप्लाइड बाय पीबी इक्वल टू पीटी स्क्वायर, दिस इज पावर ऑफ ए पॉइंट। इन जनरली एग्जाम में एडवांस के अंदर वो ये वर्ड यूज करना मुश्किल है, दैट यू हैव टू डिफाइन पावर ऑफ ए पॉइंट। जनरली क्या है, एडवांस में क्वेश्चन विल कम, ही विल नॉट राइट पावर ऑफ ए पॉइंट वर्ड एनीवेयर, बट पावर ऑफ पॉइंट को अपन ऐसे डिफाइन करते हैं सर्कल से। तो जिस भी सर्कल में मुझे एक्सटर्नल पॉइंट से यू कैन सी वन कॉर्ड एंड वन टेंजेंट, यू कैन आल्सो सी, यहाँ पे इंटरनल पॉइंट से भी दिख सकता है, एक्सटर्नल पॉइंट से भी अपने को दिख सकता है, ए बी और सी डी, ए बी सी डी, पीए मल्टीप्लाइड बाय पीबी इक्वल टू पीसी मल्टीप्लाइड बाय पीडी, ये यहाँ पे भी अपने को दिख रहा है ना। सो दिस इज कॉमन, देखो ये दो कॉर्ड दिख रही है और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट वी नो, दिस इज ओरिजिन। सो फ्रॉम हियर यू आर सीइंग टू कॉर्ड्स ए ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी, इस तरह से अपन ने डिफाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे पावर ऑफ पॉइंट से मैं लिख सकता हूँ ओ ए मल्टीप्लाइड बाय ओ बी इज इक्वल टू ओ सी मल्टीप्लाइड बाय ओ डी,
दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, पावर ऑफ ए पॉइंट, जो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। इस पे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कितने भी। तो OA व्हाट यू विल डिफाइन, तो उसके लिए आप देखो ज्योमेट्री का यूज करना इजी रहता है। OA व्हाट विल बी द डिफाइन, यहां से लेकर के यहां तक H है, एंड दिस इज A, सो दिस विल बिकम H माइनस A, राइट। OB यू नो 2A प्लस H माइनस A, तो ये तो हो जाएगा H माइनस A, दिस विल बी 2A प्लस H माइनस A, OB will be AB plus OA, OC will be K minus B, and OD will be K minus B plus 2B. So you will get the same equation. ऐसे भी अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने ये डायग्राम इसलिए एक्सप्लेन किया है, यस टेल मी। सर ओ पॉइंट तो आउटसाइड है ना, पर आपने एग्जांपल दिया था इनसाइड वाला। ये नहीं, ये रहा यहाँ पे देखो, दिस इज आल्सो आउटसाइड पॉइंट। फॉर इनसाइड पॉइंट यू कैन आल्सो डू दिस, दो कॉर्ड की लेंथ को फ्रॉम आउटसाइड इफ यू ड्रॉ टू सीकेंड्स PA PB PC PD, you can also relate like this. It is valid for inside as well as outside point. What I am trying to say is कि basically कभी भी कॉर्ड, देखो ध्यान रखो, जो भी क्वेश्चंस बनाए जाते हैं सर्कल्स में, अगर किसी भी क्वेश्चन में लेंथ दी हुई है, लेंथ जनरली सर्कल के केस में एक ही होती है, दैट इज रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे और कोई लेंथ दे दी, कॉर्ड की लेंथ, टेंजेंट की लेंथ, लेंथ दैट इज मैग्नीट्यूड, तो यू ऑलवेज हैव टू थिंक पावर ऑफ ए पॉइंट। कॉर्ड की लेंथ दे दी, यू कैन थिंक अबाउट पावर ऑफ ए पॉइंट, यू कैन थिंक अबाउट दिस 90 डिग्री का ट्रायंगल। यही चीजें तुम्हें अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्योंकि लेंथ इसी फॉर्मूले में या इन कॉन्सेप्ट्स में आती है। अभी क्लियर है? अब देखो अपन आगे चलते हैं। सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, एन इंपॉर्टेंट सर्कल। और यहाँ पे देखो, ये वाला सर्कल तो कोऑर्डिनेट एक्सिस से पकड़ा था, एक सर्कल है जो ओरिजिन से पास करता है। देखो फिर से वो डायग्राम आ गया, 90 डिग्री है यहाँ पे। So these 3 points are the diametrical and these 2 points are the diametrical end points of circle passing through origin. तो अब इसकी इक्वेशन ऐसे लिखने के बजाय हम लिखते हैं कि this will be the circumcenter of triangle OAB and it will lie upon the hypotenuse। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सर्कमसेंटर हम इसलिए भी डिस्कस करते हैं, सर्कम सर्कल हम इसलिए भी डिस्कस करते हैं, बिकॉज फॉर 90 डिग्री ट्रायंगल इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एनीथिंग 90 डिग्री, अगर सपोज मैं बात करता हूं एक स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर एक सर्कल है, स्क्वायर के बाहर एक सर्कल है, इस तरह के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। जहां पे भी 90 डिग्री है इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। तो इस तरह के फिगर्स के लिए ये चीज काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है। ये लाइन हम फिर से देख रहे हैं 90 डिग्री वाली। इसका अपन ने क्वेश्चन देखा था, यहां से अपन ने ऊपर 90 डिग्री बनाया था। अभी एक क्वेश्चन देखा था, ये देखा है कि यहां से 90 डिग्री, जो इससे पहले अपन ने क्वेश्चन देखा था वो देखा था इस तरह से कि अपन ने ऊपर भी ऐसे कुछ 90 डिग्री बना दिया। तो ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट क्या था, वाई डायरेक्शन में एक सर्कल और एक्स डायरेक्शन में एक सर्कल का इंटरसेक्शन पॉइंट, वो वहां पे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सारे ये सब मिक्स्ड है, लिंक्ड है, मैं इसीलिए इसको ध्यान रखता हूँ। ये जो पॉइंट है दिस विल बी द मिड पॉइंट ऑफ AB, ये अपने को पता है, दिस विल बी मिड पॉइंट ऑफ AB। AB विल बी द डायमीटर, ये भी अपने को पता है। और ये रेडियस अगर मैंने यहाँ पे R लिखी तो ये भी क्या होगी, दैट विल बी रेडियस R के बराबर ही होगी। ठीक है, तो देखो जैसे ही मुझे कॉर्ड दिखी, आई जॉइंट द एंड पॉइंट्स ऑफ कॉर्ड, दैट इज नथिंग बट रेडियस, एंड आई कैन ड्रॉ परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड फ्रॉम हियर एंड हियर। अब यहाँ पे मैंने ये लिखा है दैट इज h, k सर्कमसेंटर। सो दिस लेंथ विल बी h, दिस विल बी h, दिस विल बी k, दिस विल बी k। तो ये 2h और 2k हो जाएगा। और अगर अपने को यहाँ पे AB डायमीटर लिख के सर्कल की इक्वेशन लिखनी है, दैट विल बी x - 0, x - 2h, y - 0, y - 2k इक्वल टू 0। ये सब चीजें अपन यहाँ पे लिख सकते हैं इस सर्कल के बारे में, इस डायग्राम से रिलेटेड। अब मैंने जान करके यहाँ पे 2h, 0, 2k, 0 इंटेंशनली लिया है, बिकॉज सेंटर विल बिकम h, k। इस तरह से मैंने इसको डिफाइन किया, ये मिड पॉइंट होगा। ये बेसिक डायग्राम है इस 90 डिग्री के ट्रायंगल के लिए। इफ देयर इज एनी 90 डिग्री ट्रायंगल गिवन, इट इज नॉट गिवन कि ओरिजिन है और सर्कल है, तो तुम ये डायग्राम को लेके सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि इफ नथिंग इज गिवन, यू कैन ऑलवेज अज्यूम दिस डायग्राम टू सॉल्व, दैट दिस इज ओरिजिन, दिस इज 2h, 0, दिस इज 0, 2k, व्हाटएवर यू हैव टू सॉल्व, यू कैन सॉल्व लाइक दिस। ओके, तो अगर कोई 90 डिग्री के ट्रायंगल का क्वेश्चन आता है, बिकॉज इन ट्रायंगल मे बी इट्स पॉसिबल कि वर्टिसेस नहीं दिए हुए, लेंथ्स डिफाइन करेंगे, तो यू कैन मेक दैट ट्रायंगल लाइक दिस, टेक दिस पॉइंट एज ओरिजिन, मेक दिस डायग्राम एंड सॉल्व द क्वेश्चन। एंड दिस इज नथिंग बट पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे अपन ने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, h² + k² = r²। अब हम चलते हैं दूसरे डायग्राम इसी में, यही वाला ट्रायंगल है। देयर आर 2 सर्कल्स, दिस इज सर्कम सर्कल, देयर इज वन थिंग मोर, इन सर्कल। तो इन सर्कल का अपन इन सेंटर डिफाइन कर सकते हैं। ये वाला जो इन सर्कल के इन सेंटर का क्वेश्चन है, इट हैज कम इन JEE Main like 7-8 टाइम्स। इस तरह का जो डायग्राम है, इट कैन बी रिटन इन डिफरेंट वेज, ए रॉड स्लाइडिंग ऑन 2 परपेंडिकुलर एक्सिस, ए लाइन इंटरसेक्टिंग कोऑर्डिनेट एक्सिस एट 2 पॉइंट्स, उसका इन सर्कल, उसका इन सेंटर, समथिंग लाइक दिस। ऐसे अलग अलग क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं।
तो अब यहाँ पे इसके लिए क्या कंडीशन होती है? इन सेंटर का कोऑर्डिनेट मैंने आपको बताया था, दिस इज द फॉर्मूला, देयर आर ओनली टू फॉर्मूलाज फॉर इन सेंटर, नो देयर आर ओनली टू फॉर्मूलाज, वन फॉर सेंट्रॉइड वन फॉर इन सेंटर, जिसमें हम वर्टिसेस से रिलेट कर सकते हैं उसका सेंटर। तो इन सेंटर बेसिकली क्या है, इसका यहां से अगर हम पास करेंगे, एक लाइन पास करेंगे, दैट विल बी द एंगल बाइसेक्टर, ये हम यहाँ पे बोल सकते हैं। दूसरी चीज क्या है, इसका अपन को कोऑर्डिनेट डायरेक्ट निकाल सकते हैं। और ये जो डायग्राम है, ये आप क्लास 10th सर्कल्स में एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, वो कैसे आता है वो भी मैं तुम्हें बताता हूँ। तो अगर अपने को इसका कोऑर्डिनेट निकालना है आर का, तो पहली चीज तो ये कि इन सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट इट विल बी सेम, हियर इट विल बी नथिंग बट ए रेक्टेंगल, नो स्क्वायर, दिस विल बी ए स्क्वायर, ओके। दिस विल बी ए स्क्वायर। तो अपन यहाँ पे ये चीज बोल सकते हैं, आर कोऑर्डिनेट अपन कैसे निकालेंगे, आई हैव डिफाइंड x1 y1 x2 y2 x3 y3, बिकॉज अगर मैं ये फर्स्ट पॉइंट लेता हूं तो जो साइड ए होगी दैट विल बी दिस अपोजिट साइड, ऑलवेज रिमेंबर, ये जो साइड ए मैंने लिखी है दिस इज ए बी, साइड बी जो मैंने लिखी है दैट इज अपोजिट टू x2 y2, दैट विल बी OB, एंड साइड सी विल बी अपोजिट टू B, तो ये आएगी OA। OB will be what? OB is nothing but 2k, whatever be the length, जो आपको वैल्यू पुट करनी है और आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो ऐसे आप इन सेंटर का कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं, ये क्लियर है। और क्या तरीका होता है इन सेंटर को रिलेट करने वाला, दैट इज इन रेडियस। इन रेडियस का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, r इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन s, बिकॉज वी नो द सेंटर कोऑर्डिनेट इज r, so we can write r equal to delta by s. Delta is area of triangle. Here the semi parameter a plus b plus c by 2. What is area of triangle? Half into 2h multiplied by 2k. This will be the area of triangle in this diagram. This will be the case. And if you will divide a plus b plus c by 2, length of a will be this length, that will come out to be 2 under root h square plus k square. तो ये जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है will calculate, this will become under root of h square plus k square plus h plus k. This will be this length. तो इसकी लेंथ आएगी under root h square plus k square. This is 2h, this is 2k, and this length will be 2 times under root h square plus k square. So if you will divide by 2, it will become this. तो अब यहाँ पे अगर आपको मैं क्वेश्चन बोलूं कि यहाँ पे सपोज इफ ए ट्राइंगल इज गिवन टू अस लाइक दिस, जो 90 डिग्री का ट्राइंगल है, इसकी इन रेडियस जो है वो अपने को गिवन है। सपोज एक क्वेश्चन, हम हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बनाते हैं, that there is a triangle whose r is given, suppose r is constant, small r, that is in radius is given. Find the locus of circumcenter. So we can directly solve by this. We know our circumcenter is h comma k, you will get the result in terms of h and k, so that will be the answer. तो यहां से अपन डायरेक्ट लोकस निकाल सकते हैं इसमें, अगर r कांस्टेंट है तो वी कैन यूज दिस टू फाइंड लोकस, तो अपन वहां पे भी इसको यूज कर सकते हैं। सो इन दिस क्वेश्चन दे हैव इंटर रिलेटेड इन द रेडियस एंड सर्कम सर्कल, समथिंग दे हैव रिलेटेड हियर। दूसरी चीज क्या है यहाँ पे, इस डायग्राम को हम क्लास 10th में कैसे पढ़ते हैं, क्लास 10th में जब अपनी डायग्राम पढ़ते हैं वी स्टडी दिस, दैट दिस लेंथ इज नथिंग बट r, this length is also r, that is from external point if two tangents are drawn their lengths are equal, and if you will write this length from here to here, it will become 2k minus r, and if you will write this length from here to here it will become 2h minus r. and अब अगर अपन यहाँ पे लेंथ लिखेंगे तो यहाँ पे अपन ये लिख सकते हैं, this length will also be equal to similar to this length, क्योंकि length of tangent from external point are equal, so we can write it as 2k minus r, and we can write length from here to here also. This length will become 2h minus r because length of tangent from external point are equal. तो ये जो हमने locus निकाला, we can find this locus by method 2 also. First method was r is equal to delta by s. We can solve this by second method also, which is 2k minus r plus 2h minus r is equal to 2 times of under root of h square plus k square. That is, we can equate the length of AB is equal to 2 times of under root of h square plus k square. So this length of AB will become 2h minus r plus 2k minus r.
तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं. So this diagram is very important. You can solve like this also, and you can solve like this also. R equal to delta bias for in circle. For x circle, you know the excenter. Excenter क्या है यहाँ पे? मैंने लिखा है इस पॉइंट के अपोजिट वाला. excenter क्या होता है? यहाँ पे इस ट्राइंगल के बाहर अगर आप एंगल बाइसेक्टर्स ज्वाइन करेंगे, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स, उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है दैट इज एक्सेंटर. एक्सेंटर जिस भी वर्टेक्स के अपोजिट निकाला जाता है. सपोज आई हैव टू फाइंड द एक्सेंटर अपोजिट टू दिस. So if I have to find opposite to this, so I will write it here minus a. This length will become minus a. तो यहाँ पे सिर्फ माइनस ए करना है बिकॉज x1 के अपोजिट निकालना है, बाकी रिमेनिंग इट विल बिकम पॉजिटिव. इफ आई हैव टू फाइंड x सेंटर अपोजिट टू दिस, सो यहाँ पे ये जो लेंथ मैंने लिखी है दैट इज OB, तो ये वाला पार्ट अपने को नेगेटिव करना है, रिमेनिंग विल बिकम पॉजिटिव. x सेंटर पे मोस्टली क्वेश्चन इज नॉट गिवन ऑन x सेंटर, मोस्टली इन सेंटर, इन सर्कल, सर्कम रेडियस, सर्कम सर्कल, दैट इज इंपॉर्टेंट. सो दिस 90 डिग्री ट्रायंगल अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया. तो इसके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए. यू शुड नो एवरीथिंग. कैसे करना है, डायमेट्रिकल फॉर्म में लिखना है, इसका सेंटर है, रेडियस का फॉर्मूला है, सब कुछ आप इंटररिलेट कर सकते हैं. किसी को कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो आगे चले. Now we will take some illustration based on that 90 degree triangle only. Locus of point of perpendicular from origin on variable line passing through 1, 2. ये क्वेश्चन आपने किया होगा. दिस क्वेश्चन यू हैव डन पहले भी. दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट अब मैंने ये क्वेश्चन लिया क्यों है? बिकॉज आई वांट टू डिस्कस डिफरेंट मेथड्स व्हिच वी कैन अप्लाई हियर. आई विल डिस्कस ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन इन दिस, जिसमें टू सॉल्व द क्वेश्चन इजी तरीका क्या क्या हो सकता है, या उस डायग्राम पे और कैसे कैसे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं. सो वी हैव टू फाइंड द लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर on this line from origin. So foot of perpendicular I have taken h comma k and it is passing through this point. तो पहला मेथड मैंने लिखा है slope. Why slope? Because if the angle is given 90 degree, you can apply the product of slopes minus 1. If we can define the slope of this line m1 and we can define the slope of this line m2. So we can define product of slopes m1 multiplied by m2 is equal to minus 1. So easily you can find equation in terms of h and k. So equation you will get here 0, 0 is there. k minus 0 upon h minus 0. Always remember, कभी भी 90 डिग्री क्वेश्चन में दिया हुआ है, you have to apply product of perpendiculars minus 1 if the question is related to lines. सर्कल है, कभी भी 90 डिग्री you have to think in terms of equation of circle as diametrical endpoints. अब यहाँ पे ये हो गया है, इसमें अगर हम यहाँ लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं k minus 2 upon h minus 1. Product is minus 1. This is the locus you can find. This is one of the methods to solve this question. Second method क्या है? I can use perpendicular form of the line because I have already told you, अगर you have drawn perpendicular from origin, you can think in terms of angle alpha and perpendicular length from origin p. So we can write it as x cos alpha plus y sin alpha equal to p. We can think in terms of this. We can apply the condition here that it passes through h comma k and it passes through 1, 2. We can apply these two conditions. These equations we can make. नहीं तो हम ये बोल सकते हैं because we can apply this equation. अब यहाँ पे हम tan alpha we can define. Tan alpha is what? That is k by h. K by h is tan alpha, slope of this line. So you can find sin alpha and cos alpha value here. P you already know, under root of h square plus k square. Sin alpha will be, tan alpha is k by h. So make the diagram k by h under root of h square plus k square alpha. So sin alpha will be k upon under root h square plus k square. So it will become the same value. We'll get the same value. Okay. Why we will get the same value? You will get left hand side equal to right hand side because we have not applied the condition. The angle here is 90 degree. Somehow we have to apply this condition. This angle is 90 degree. तो अपन ने यहाँ पे ये कंडीशन तो लगा दी, tan alpha equal to k by h. This is fine. And I will find the tan alpha value. 90 degree condition we have already applied because we have taken perpendicular form of the line. तो 90 degree की condition तो already आ गई. We have not applied this condition. It passes to 1, 2. तो अगर अपने को h, k की टर्म्स में वैल्यू पुट करनी है तो यहाँ पुट करेंगे rather than putting it here because this condition we have to apply. It passes through 1, 2. So here we will write cos alpha. Cos alpha is base upon perpendicular. Sin alpha is base upon hypotenuse हो गया, ये हो गया यहाँ पे perpendicular upon hypotenuse. And here perpendicular p is under root of h square plus k square. You can solve like this also. You will get a similar kind of result जो आपका पहले आया था. It will be an equation of circle only. अभी अपन ने इस तरह का क्वेश्चन देखा था in circle also, but let me tell you one more method. Third is equation of line.
I will use coordinate axis at endpoints a, 0, 0, b. Equation of line we know. Intercept फॉर्म में x by a plus y by b equal to 0, 1. तो यहाँ पे h, k सेटिस्फाई करेगा, 1, 2 सेटिस्फाई करेगा. थर्ड थिंग आई विल अप्लाई द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स -1. दिस इज प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स -1. प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स इज, इसका अगर आप स्लोप निकालेंगे a और b की टर्म्स में, इट विल बिकम -b by a. इसका अगर आप स्लोप निकालेंगे, इट विल बिकम k by h. So these are three equations you have to eliminate a and b. तो a and b को अगर अपन कैसे एलिमिनेट करेंगे यहाँ पे, तो एक काफी कॉमन तरीका होता है कि अगर मैं यहाँ पे इस कांस्टेंट को इक्वेट करता हूँ, so I can find from these two equations a by b. This is how you also eliminate a by b, a and b. From these two equations you can find a by b in terms of h and k, that is a by h. From these two also you can eliminate a and b. तो 1 को अगर हम यहाँ पे इक्वेट करेंगे तो h by a minus 1 by a. इक्वेटिंग 1 से अपने क्या आएगा, कांस्टेंट से अगर अपन इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग कांस्टेंट, तो यहां से आ जाएगा h minus 1 by a is equal to 2 minus k by b. So here you will get a by b equal to h minus 1 upon 2 minus k. अब अपन यहां से इसको और इसको इक्वेट कर देंगे तो अपना लोकस की इक्वेशन आ जाएगी. नाउ दीज क्वेश्चंस आर सिंपल. व्हाई सिंपल? बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है इट इज पासिंग थ्रू 1, 2. तो अगर क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है इट इज पासिंग थ्रू 1, 2, इस तरह से नहीं है, तो सपोज मैंने एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बनाया कि अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ 1 by a square plus 2 by b square equal to 1, इस तरह से है दैट जिस लाइन पे अपन ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उसके लिए यहाँ पे इस तरह से कंडीशन लिखी गई. ये एक लाइन है जो a, b से पास करती है इस तरह से, और उसके लिए यहाँ पे ये जो a और b है इससे अपने ऐसे कोई कंडीशन डिफाइन कर दी कि इलिप्स के ऊपर पॉइंट 1, 2 है, इस तरह से कंडीशन है और आपको लोकस निकालना. तो अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या है, कैलकुलेशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उसी का मैं आपको तरीका बताता हूँ एक और दूसरी चीज ये, अगर हम इस परपेंडिकुलर लाइन पे यहाँ से अगर जो सेंटर के साथ 90 डिग्री बना रही है, फिर ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, वी कैन मेक 2 सर्कल्स ऑलवेज. एक ये वाला सर्कल, दिस वन, whose diametrical end points will be 0, 0 and a, 0. We can make this circle always. We can make one more circle, which is this one. So we can always make 2 circles. Always remember this for this diagram. तो पहला वाला जो सर्कल है, we can always make this circle, whose diametrical end points are 0, 0 and 0, b. और अभी आप नोटिस करो यही डायग्राम हमने पहले भी डिस्कस किया था. एक सर्कल जिसका x एक्सिस पे सेंटर है, दूसरा सर्कल जिसका y एक्सिस पे सेंटर है, they are intersecting at one point and the point where they are intersecting that is nothing but 90 डिग्री. ये वही डायग्राम है, उसको यहाँ पे अपन ने बनाया. तो ये सेम ही क्वेश्चन है, उसको अलग तरीके से लिखा गया, यू कैन से दिस. तो यहाँ पे अपन वो इक्वेशन लिख सकते हैं सर्कल 1 की, that is x minus 0 and x minus 0 plus y minus 0, y minus b is equal to 0. This is circle 1. इसी तरह से अपन सर्कल 2 की इक्वेशन लिख सकते हैं. अब मैं क्यों कर रहा हूं अभी आपको क्लियर हो जाएगा. इससे एक अपन रिजल्ट निकालेंगे व्हिच यू कैन यूज इन लोकस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. अगर इस तरह से कंडीशन दी हुई होती है उससे कैलकुलेशन इजी होती है. x minus 0, x minus a plus y minus 0, y minus 0. अब यहां से क्या होगा, देखो, नाउ दीज 2 सर्कल्स आर पासिंग थ्रू h, k. So it passes through h, k and this also passing through h, k. If you will put h, k here, what you will get? You will get h square plus k square minus bk equal to 0. This you will get, here you will get h square minus ah plus k square equal to 0. So from here you will get a is equal to h square plus k square by h. This is the result you will get. From here you will get b is equal to h square plus k square by k. अब इसके बाद में आपका कैसा भी क्वेश्चन बनाया जाए, ऐसे सपोज ये कंडीशन दी हुई है, यू कैन ऑलवेज सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय पुटिंग हियर द वैल्यूज ऑफ a एंड b. और ऐसा नहीं कि ऐसे क्वेश्चन बनाया नहीं गया, इस तरह का क्वेश्चन एक बार जेईई बैंक में आया था. तो easiest method what I found is this one, that you can find the value of a and b in terms of h and k. You just put here and find the equation of locus. तो इस तरह से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं. दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन. अदरवाइज इट इज अ सिंपलर क्वेश्चन, बट इस तरह से अगर क्वेश्चन बना देता है इट बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड एंड यू हैव टू सॉल्व लाइक दिस. तो ये अपने को क्लियर होना चाहिए. अब हम देखते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन. पिछले इलस्ट्रेशन में किसी को कोई डाउट है, कुछ दिमाग में कुछ आ रहा है तो मुझसे डिस्कस कर लो, तो आगे चलते हैं अपन.
So I have discussed the importance of this diagram, perpendicular line, 90 degree triangle. इसके बारे में जितना पता कर सकते हो you have to know, because if this diagram will come you should be that much comfortable that you can solve anything. अब अपने क्वेश्चन देखते हैं जो आईआईटी के एडवांस के पेपर में आया था, बट इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन. हाँ बोलो. सो ये इंटरसेप्ट फॉर्म में जो इक्वेशन का लाइन है वहाँ पे a स्क्वायर होगा या a होगा? हाँ यहाँ पे हाँ. नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि इफ सपोज देयर इज अ क्वेश्चन लाइक दिस, सपोज द क्वेश्चन इज नॉट दिस, क्वेश्चन इज locus of foot of perpendicular, okay, on a variable line. The question is this, and the line is given to us x by a plus y by b equal to 1. Satisfying condition. If this is the question, it is not this question. Question अपने को ये दिया हुआ है. If you have to find the locus of foot of perpendicular on a variable line satisfying this condition. तो अब ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में फर्क है. इसमें सिर्फ लिखा हुआ है locus of foot of perpendicular obviously from origin is there. ओके तो अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो अपने को ये तरीका सॉल्व करना पड़ेगा, उसमें ये नहीं दिया हुआ. इस वाले क्वेश्चन में ये दिया हुआ है अपने. दिस इज अ सेपरेट क्वेश्चन. इज इट क्लियर नाउ? यस सर. तुम दूसरे तरीके से एलिमिनेट करने की कोशिश करना. इट बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड, इट बिकम्स डिफिकल्ट. ये तरीका मेरे को सबसे इजी लगा सॉल्व करने में, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं. एंड दिस डायग्राम आल्सो इंपॉर्टेंट. ये डायग्राम अभी अपने थोड़ी देर पहले भी देखा था, उस पर और क्वेश्चन बनाए जाते हैं. यहां तक सबको क्लियर है? अब देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं. आईआईटी का क्वेश्चन है, आईआईटी जे का कुछ 1980 समथिंग का क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन फिर से आ सकता है क्योंकि इट कैन बी मेड इनटू अ पैराग्राफ एंड यू कैन सॉल्व मेनी अदर क्वेश्चंस आल्सो. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टू एंड्स ए एंड बी ऑफ ए स्ट्रेट लाइन ऑफ कांस्टेंट लाइन सी स्लाइड अपॉन फिक्स्ड रेक्टेंगुलर एक्सिस OX एंड OY रेस्पेक्टिवली. रेक्टेंगल OAPB इज कंप्लीटेड. तो ये फिक्स्ड रेक्टेंगुलर एक्सिस है, तो ये ओरिजिन है. अपन ने रेक्टेंगल कंप्लीट किया है OAPB. तो ये O है, A है, B है, B है. दिस इज द रेक्टेंगल वी हैव कंप्लीटेड. We have to show that the locus of foot of perpendicular from P to AB is. हो सकता है तुमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया होगा. यहां से अपन ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और अपने को इसका लोकस निकाला. नाउ दिस इज अ डिफरेंट क्वेश्चन. अभी क्वेश्चन जो देखा उसमें ओरिजिन से अपन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे थे, यहां पे अपन यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे थे. सो दिस इज अ डिफरेंट क्वेश्चन. इसका अपने को यहां पे लोकस निकालना. ये अपना क्वेश्चन है. तो इसमें AB की लेंथ अपने को दी हुई है C के बराबर. दिस इज ऑफ कांस्टेंट लेंथ C. तो ये मैंने यहां पे लिख लिया. अब इसको अपन कैसे कर सकते हैं सॉल्व? तो अब इसको सॉल्व करने का एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पे क्या करो, इसको मान लेंगे a,0 या फिर मैं इसको b,0. चलो a,0 लिख लेते हैं. दिस इज a,0, दिस इज 0,b एंड दिस विल बिकम a,. ओके फर्स्ट मेथड व्हिच आई फाउंड इज कि आप ऐसे कर सकते हैं हमेशा, बट उसमें क्या है इवेंचुअली होता क्या है कि यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ h and k. And to find the equation in terms of h and k it becomes difficult because elimination becomes difficult. That is the problem. अब यहाँ पे जो सबसे पहली कंडीशन लिखी गई, लिखा हुआ है AB is equal to constant C. तो लेंथ AB को अपन क्या लिख सकते हैं, that is A square plus B square is equal to C square. This is the first equation which we have been given. मैं यहाँ लिख लेता हूँ A square plus B square equal to C square. अगर मैं वेरिएबल A, B अज्यूम करता हूँ तो ऐसे मैं एक इक्वेशन लिख सकता हूँ. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक तरीका अपना ये है that you write the equation of this line x by a plus y by b equal to 1. This is first equation of line. Then you write the equation of this line which will be y minus b upon x minus a. That is this line passing from this point and perpendicular to this. इसका slope है minus b by, so the slope of this will become a by b. And you solve equation number 1, 2 and 3. But what you will find is it becomes complicated. Solving equation 1, 2 and 3 and eliminating a and b, it becomes complicated. तुम करके देखना तब तुम्हें पता चलेगा ये. तो अब यहाँ पे मैं आपको एक और मेथड बताता हूँ. What could be the starting point to solve this type of question? The same method you can use in the previous question जो मैंने अभी आपको कराया है. वो मैंने अलग तरीके से कराया क्योंकि उसमें अपने को सर्कल दिख रहा था. अब तुम यहाँ पे बोलोगे सर्कल सर अपन यहाँ पे भी बना सकते हैं because here it is 90 डिग्री. तो अपन एक सर्कल U बना लेते हैं और एक सर्कल अपन U बना लेते हैं. We can do that also. एक सर्कल यहाँ बना ले और एक सर्कल अपन यहाँ बना लें. बट मैंने वैसे सॉल्व करके देखा तो उससे कुछ कैलकुलेशन हो ही नहीं रही थी क्योंकि दोनों सर्कल से एक ही कंडीशन आ रही थी. देयर वाज नथिंग न्यू इन दैट केस. ये मैंने वहां पे ऑब्जर्व किया था, ऐसा नहीं हो रहा. इस वाले क्वेश्चन में क्या है, ओरिजिन इसने फिक्स कर दिया है O पे, फिक्स रेक्टेंगुलर एक्सिस पे. तो वैसे करके देखना, अगर किसी कुछ और मिलता है तो इट्स अ गुड थिंग, बट उससे मेरे को फायदा नहीं हो रहा था. तो मैं इसलिए नेक्स्ट एक और मेथड है जो मेथड यहाँ डिस्कस करूंगा. यू कैन यूज इट इन द प्रीवियस क्वेश्चन आल्सो.
तो अब देखो, जब इस तरह से कंडीशन लिखी हुई होती है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर जैसे दिया हुआ है, तो इसका अपना एक थॉट प्रोसेस ऐसे हो सकता है, वी राइट द सेम इक्वेशन लाइक दिस, a स्क्वायर बाय c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय c स्क्वायर इक्वल टू 1। अपन उसको ऐसे लिख लेते हैं। अब अपन क्या करते हैं, इसको इस तरह से अज्यूम करते हैं, दिस इज समथिंग रिटन है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ऐसा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। अपन क्या करते हैं, एलिमिनेशन जब करते हैं, वी राइट a by c as sin थीटा, और यू कैन राइट इट द अदर वे अराउंड आल्सो, यू कैन राइट हियर sin स्क्वायर, यू कैन राइट हियर cos स्क्वायर, ऐसा आप कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली थीटा को एलिमिनेट करना इजी होता है, a और b को एलिमिनेट करना मुश्किल। तो अब इस इक्वेशन को मैं डायरेक्टली ऐसे यूज करूंगा कि मैं इसको इससे कंपेयर कर रहा हूँ, यहाँ मैंने 1 जनरेट कर लिया, तो इससे क्या होगा कि मैंने क्या किया, बेसिकली a की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ c cos थीटा एंड b की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ c sin थीटा। दिस कुड बी योर स्टार्टिंग पॉइंट, और उसको आप यूज करो इसके साथ में, यहाँ पे a को c cos थीटा, यहाँ c sin थीटा, यहाँ c cos थीटा c sin थीटा, उससे एलिमिनेट करने की कोशिश करोगे तो अब आपकी दो ही इक्वेशन है, यू हैव ऑलरेडी कंसीडर्ड दिस, so there are only two equations, along with this you have to eliminate theta. That is one of the way to solve the question. Same concept you can apply in the previous question also. Suppose there was written like this, 1 by a square plus 2 by b square equal to 4. I have written this, right? So I will divide it by 4, so it will become 1 by 4a square plus 1 by 2b square equal to 1, and I will write this sin square theta plus cos square theta, so I can write sin theta equal to 1 by 2a and cos theta equal to 1 by root 2b. और वैसे आप एलिमिनेट करने की कोशिश करना, वैसे भी आंसर आ जाएगा, इस तरह से एलिमिनेट करोगे ना तो उससे भी आपका आंसर आ जाएगा, बट दैट कैलकुलेशन वाज अ बिट लेंथियर, दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू दैट मेथड कि वो सर्कल यहां से पास करता है, यू कैन फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b इन टर्म्स ऑफ h एंड k इजीली इन दैट केस। बट नाउ इन दिस केस, बिकॉज द ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं किया, वी हैव ड्रॉन परपेंडिकुलर फ्रॉम द अदर पॉइंट, आई ट्राइड सॉल्विंग इट बाय दिस मेथड, बाय टेकिंग द इक्वेशन ऑफ सर्कल लाइक दिस, taking the equation of circle like this, but it was not helping, maybe it will help, you can try, but मेरे से फर्स्ट टाइम में सॉल्व वैसे नहीं हुआ। तो एक और मेथड होता है, दैट इज द मेथड ऑफ दिस थीटा, but this theta you can always make in this triangle also, because if there is always a 90-degree triangle, you can always define an angle theta. So this theta is basically this one. If I will take this angle as theta, you can take theta here also, you can take theta here also, it doesn't matter. If you will take theta here, this length will become c cos theta. See, यहाँ पे अपन ने यही किया है, unintentionally, without knowing we have done this. But from geometrical point of view, if there is any 90-degree triangle, you can start by assuming one of the angle as theta, the other angle will become 90 minus theta, and you can use simple trigonometry. So here this length will become c sin theta, which is nothing but d, which is what we have written here. So 90-degree के triangle में theta is important because you can use Pythagoras, not Pythagoras, trigonometry you can easily use. You can find other sides in terms of theta also. तो हम इस तरह से क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। Now if this is theta, this will also be theta. Here also the angle is 90 degree. This is theta, this will become 90 minus theta. So here also it will become theta. So we have defined in all 90-degree triangles the value of theta. Here it is theta, here it is theta, here is this theta. And we have to define h and k in terms of theta. So that is our target. What is h and k? This is the value of k. And this is the value of h. This is h. So our target is we have to define h and k in terms of theta, because we can easily eliminate theta to find the answer of locus. That should be your target. So geometrically we have to find h and k in terms of theta. That should be your target to solve the question. तो अब अपन कैसे करेंगे आगे? तो इस triangle, this triangle we have already used. How? Because we have defined c cos theta, c sin theta. Now we will come to this triangle, then we will go to this triangle. Something like this we will use. If I will come to this triangle, I know the length of this side. This is same as c cos theta. So if I will have to use this theta, I can define this length, PM. I can easily define this length in terms of theta. I have to write the lengths always in terms of c and theta, because if there will be single variable, it will be easy to eliminate and solve. So this length will become c cos theta sin theta. Because here if you will apply trigonometry, this is perpendicular, this is hypotenuse, perpendicular upon hypotenuse is sin theta. So this value will come out to be c cos theta sin theta. Now we have defined this. We have to define h and k. So now what we will do? H and k. Is there any triangle in which h and k is coming? H is coming in this 90-degree triangle, because I have constructed this 90-degree triangle here, and k is coming in this 90-degree triangle I have constructed here, something like this. So
in this 90-degree triangle, if I will define H, what that will be? So I will make here this triangle, because we know this small triangle is same as this small triangle. Okay, so if I have defined this length, I can define AM also. What will be AM? C cos square theta, right? This will be C cos square theta. This will be AM, because in this complete triangle, if you will find trigonometry, this will be C cos theta sin theta. This is C cos square theta. And to find H, that will be, in this triangle you will apply trigonometry. In this triangle, if you will apply trigonometry, that will be C cos square theta multiplied by cos theta. That will be this length. तो यहाँ पे अपने को ये पता लग जाएगा मेथड नंबर 2 के हिसाब से, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से, दैट इज H will be C cos cube theta. अब यहाँ पे अगर अपन ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, दिस इज C cos square theta. Similarly, if you have to find K, use this triangle. In this triangle, can we find this length? You can find this length easily, because we know this length C sin theta. This is C sin theta. So this length will become C sin square theta, right? If this is C sin square theta, you can find this length. No, we have to find K. Okay, so that will become C sin square theta sin theta. So K will become C sin cube theta. So see, this diagram is very important. इस तरह से हम थीटा के टर्म्स में कर सकते हैं. Now we have to just eliminate theta. To eliminate theta, what we use? The relation cos theta will be H by C raised to power 1 by 3. Sin theta will be nothing but K by C raised to power 1 by 3. So now you will apply the condition sin square theta plus cos square theta equal to 1. So you will find the locus. Because to eliminate theta in terms of sin and cos, we just apply Pythagorean triple. So it will become H by C raised to power 2 by 3. Here it will become K by C raised to power 2 by 3 is equal to 1. So this is the locus of foot of perpendicular. Any doubt in this? Or we move forward? किसी को कुछ पूछना है? नहीं तो आगे चले? तो हाँ बोलो. So ये थीटा का कॉन्सेप्ट हम लोग किसी भी टाइप में भी लगा सकते हैं. Theta का concept you always apply in terms of a 90-degree triangle. Any 90-degree triangle, if a length is given, देखो 90 डिग्री के अंदर 90 डिग्री के अंदर 90 डिग्री का triangle. In any 90-degree triangle, you have to use the concept of theta. You can solve. It's a very important concept, like theta 90 minus theta, theta 90 minus theta, theta 90 minus theta. It is very common. The same concept we use in similar triangles also. In similar triangles हम वो angles को equate करके ratio equate करते हैं. इसी तरह से मैंने तुम्हें वो बताया था ना, मैंने तुम्हें शायद पहले बताया था कि ये वाला triangle important है. 90 डिग्री के अंदर ट्रायंगल, यहाँ पे भी 90 डिग्री, ये ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल सिमिलर, और ये वाला अपन ने भी डायग्राम भी देखा था. इफ दिस इज कोऑर्डिनेट एक्सिस, दिस इज दैट लाइन, फुट ऑफ परपेंडिकुलर. तो उस क्वेश्चन को तुम इस तरह से भी करके अगर देखना थीटा के टर्म्स में, यू विल गेट द सेम आंसर. अप्लाई द कांसेप्ट ऑफ थीटा हियर आल्सो इन द प्रीवियस क्वेश्चन, यू विल गेट द सेम आंसर. इस पे क्वेश्चन आते हैं लाइक अकॉर्डिंग टू मी 90 डिग्री ट्रायंगल इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक सिमिलर टू इक्विलेटरल ट्रायंगल. और क्वेश्चन में कभी ऐसा लिखता नहीं है कि ये 90 डिग्री का ट्रायंगल है, इसीलिए मैं ये डायग्राम्स तुमको बता रहा हूं. लाइक कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ कभी भी ऐसा ट्रायंगल बनेगा, यू कैन यूज दिस ऑलवेज. देखो क्वेश्चन जो को एग्जाम में दिया हुआ होता है उसमें कभी भी ऐसे लिखा हुआ नहीं होता, यू हैव टू यूज दिस. व्हाट वी हैव टू अप्लाई, वी हैव टू थिंक. सो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स यू कैन अप्लाई टू ए 90 डिग्री ट्रायंगल. मैं हमेशा जब भी 90 डिग्री का ट्रायंगल आता है, एनी 90 डिग्री ट्रायंगल, आई ऑलवेज थिंक इन टर्म्स ऑफ थीटा, बिकॉज़ इफ आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम इन एलिमिनेशन, so I try to use trigonometry also. 90 degree triangle is there in chord from center of circle. If you draw a 90 degree triangle with the chord, that is also a 90 degree triangle. In diametrical form, that is also 90 degree triangle. So see, theta concept is basically, it is without coordinate geometry. We are not using coordinate geometry, we are just defining. Only coordinate geometry which we are using is, that is x-axis and y-axis coordinates. That is what we are using, nothing else. Remaining we are using just basic geometry. So theta you can use in square questions, theta you can use in circle questions, square questions, theta you can use in rectangle questions also. अगर कोई rectangle का इस तरह से डायग्राम आता है या फिर square का डायग्राम है coordinate axis के साथ, even if it is not defined, we take one of the coordinate as 0, you can always use the concept of theta. Wherever there is an angle of 90 degree, you can use the concept of theta. अभी क्लियर है? तो बेसिकली क्या है, ये सब दिमाग में रखने वाली चीजें, इसलिए मैं ये सब डिस्कस कर रहा हूँ. क्वेश्चन को आप और तरीके से भी कर सकते हो, जैसे मैंने बताया ना, इससे करके देखो, मैंने ऐसे करके देखा, कैलकुलेशन ज्यादा है, थीटा से कम है, क्योंकि ये जो है इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं. ये जो मैंने लिखा ना, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, दिस इज जस्ट लाइक पैरामेट्रिक फॉर्म, लाइक यू डिफाइन पैरामेट्रिक फॉर्म फॉर पैराबोला, पैरामेट्रिक फॉर्म फॉर इलिप्स, समथिंग लाइक दैट, वैसा सा कुछ है. ये तो डिस्कस कर लिया अपन ने.
नेक्स्ट है पॉइंट एंड ए सर्कल। तो सर्कल की इक्वेशन से रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, मोस्टली कोऑर्डिनेट एक्सिस का जिसमें डायग्राम बनता है, इस तरह के जो क्वेश्चंस बनते हैं। पॉइंट एंड ए सर्कल का बेसिक कॉन्सेप्ट सबको पता होगा ना, पॉइंट इनसाइड द सर्कल, पॉइंट ऑन द सर्कल, पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। Yes, sir. अब इसमें जो ये ना मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट इन द ऑफ ए सर्कल, दिस कॉन्सेप्ट कम्स इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। Complex numbers में we will discuss the equation of circles, but this concept is very important in complex numbers. What happens is कि एग्जाम में अगर IIT में क्वेश्चन आता है, if there is question in IIT, the question in circle it will not come like point and this circle का minimum and maximum distance. But this question in complex number is a favorite question, like it comes way number of times. The same concept here, the same concept there, everything is same. In complex numbers, what they do is they write the distance between 2 points is this, mod of z minus z naught. And you have to minimize this or maximize this. This is just distance between z and z naught. So this is just distance between 2 points you have to maximize or minimize. And in question it is written z lies on circle. This is how it is written in complex number. Z lies on circle मतलब उसमें क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता है, mod of z minus z naught equal to z minus z1 equal to r. So there is a point on this circle whose distance from another point you have to maximize or minimize. This is the same concept. You have to maximize and minimize the distance of any point from the circle. The same concept. It is written like this in complex number. It is very favorite topic in complex number, which is repeatedly asked in JEE Advanced. In JEE Advanced, in complex number, maxima minima questions are their favorite, involving geometry. And in geometry, their favorite is circles. That is why circles is very important. तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आता है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो अब इस कॉन्सेप्ट में होता क्या है, तो ये जो डिस्टेंस निकालना है, दिस कम्स इन कॉम्प्लेक्स नंबर। डिस्टेंस कहां पे लाई करता है, वी नो मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए सर्कल लाइज अलोंग द पॉइंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ सर्कल एंड दैट पॉइंट। सो व्हाट यू डू इज कि अगर हमें पॉइंट पी का डिस्टेंस लिखना है, सो वी विल जॉइन दैट पॉइंट विद द सेंटर ऑफ सर्कल एंड यू विल ड्रॉ ए लाइन, and that line it will intersect the circle at point A and B. So PB will be the maximum and PA will be the minimum. That is how you define. So PA will be what? R minus PC, distance between this point and center, and this will be R plus PC. If the point is inside, if the point is outside, this will be the maximum. We will join this center of circle and this point, we will make the line. So this will become the minimum distance. And this will become the maximum distance. This is how it is. Okay. तो अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, एक तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, that is mostly framed in complex numbers. So that is why the question doesn't come mostly from point and a circle in circles. But this is the same concept in complex numbers. The concept other is this one. The point lies inside the circle. You just put the point in the equation of circle and satisfy less than 0. So if we write the equation of circle as S, if we satisfy that point x1 comma y1, we write it as s1. So this is s1 less than, this is s1 equal to 0. This is s1 greater than 0. तो ये बेसिक कंडीशंस हैं, ये सबने पढ़ी हुई होंगी। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन एक बार JEE एडवांस में आया हुआ, इस तरह का क्वेश्चन फिर से आ सकता है। दैट इज बेस्ड अपॉन इनइक्वालिटी। द क्वेश्चन इज रिटन द वैल्यू ऑफ a over which this point lies inside the larger segment of the circle made by the chord whose equation is this. Always remember this question can come in complex numbers also. So complex numbers is nothing but geometry if we talk about geometrical. So in complex number, if the equation is written of circle, we change that equation into this form. If the equation of line is written, we change the equation of that line into this form. So this question can be framed in complex number like this. There is a circle given. If I talk about complex numbers, see how they write in complex numbers. It is easier, but we just get confused. They write it like this, mod of z minus z naught is less than equal to r. It means points inside the circle. We will discuss this in complex numbers. It means point inside the circle. This is what it is writing, that this point lies inside the circle. In the larger segment, that is another thing. And there is another inequality in complex number that they will write. Equation of line, they write it something like this, z bar t plus zt bar, something like this, plus c equal to 0, something like this they will write. So this is a circle, this is a line, and here also they will apply inequality. Something, if this is less, they will write this is greater than equal to 0, something like this they will write. And that it will talk about a point which will satisfy in this region. This type of questions you will see in previous year. It is given. इस तरह से वहां पे वो क्वेश्चन बनाया जाता है. So what we apply the condition. तो अब मैंने यहाँ पे ये डायग्राम बनाया. So what we do is, if it is written in complex number, we change that equation into this and this first. Then it is a question of circles only. There is no complex number. Forget about complex number. It becomes easier.
So what we do is this point lies in the larger segment of circle made by the chord. So first condition we will apply for this point, and let me make this point. This point is lying here, point P, alpha minus 1 comma alpha plus 1. So first condition we will apply, P is inside the circle. P is inside the circle means if we will write the equation of circle as S equal to 0. Okay, so I will apply the condition S1 is less than 0. This is the first condition we will apply. It is inside the circle. It lies in the larger segment. So larger segment ho ya smaller segment ho, it is inside the circle. So this is the condition which we will have to apply. But now what will be the condition for larger segment, that this is in this part. So for larger segment, the condition that we will apply is that this point and the center of circle, you can find the center of circle, which is nothing but 1 by 2 comma 1 by 2. Second condition we will apply that point P and center of circle, they lie on the same side of line. Because if they will lie on the same side of line, that will be the larger segment. This is the smaller segment. If the point is in this segment, it means we apply the condition C and P lies on the opposite side. This type of question has been asked once in JEE Advanced, but point and a circle is important because it comes in complex numbers also. So these two conditions will apply. And for 2 points, how you will apply the condition on opposite side? We will satisfy first point in the line, that is this one, 1 by 2. This one, alpha minus 1 and alpha plus 1. If you will satisfy this point, so x ki jagah we will put alpha minus 1, y is alpha plus 1, minus 2. First point and second point you will put in the equation of line. Those two will give the opposite same sign because they are on the same side. ये आपको condition पता होगी, so we'll apply this is greater than 0. This is the condition we will apply. And first and second, if you will take intersection, you will get the values of alpha. This will give you alpha. This is how you solve the question. So this is the first question which can be framed on this. Second question is maximum minimum distance. That is a direct question that comes in complex number. Third type of question that is framed is this one. See, the question is written, the point on the circle is nearest to the point this at a distance of 4 units and the farthest point is this one. अब ऐसे वाले क्वेश्चन में डिपेंड्स कि this point is inside the circle or this point is outside the circle. I am considering this point outside the circle. So this type of question can be made in more than one correct option. So if this point is outside the circle and this is nearest, the point on the circle nearest to this. So what I will do is this point is outside, I will make the point here 2, 1. The point on the circle nearest to this is at a distance of 4 units. So we know the point nearest and farthest, they lie along the line joining the point P and the center of circle. So if here is center of circle C, I will join these 2 points by a line. If this point is outside or inside, I am taking the case of outside. So the minimum distance will be also along this line. So if this is the point on the circle and that is at the minimum distance, and this is the point on the circle that is at the maximum distance. Farthest point we have been given. So if I will define this point as A, this point as B. So B we have been given 6, 5. Then we have to define the equation of circle. So this will be the circle we have to define. Something like this question is there. But since the question, it is not given to us that the point is outside or inside, so we can make the similar diagram if the point P is inside the circle. तो हम उसके लिए भी डायग्राम बना सकते हैं जब पॉइंट P सर्कल के अंदर है. तो इसके केस में अपने को ये पॉइंट C से रिलेटेड इंफॉर्मेशन निकालनी है, that is center of circle and radius of circle. If we can find those two things, we can find the equation of circle. So now how to find the center of circle? We have been given this distance is 4 units. We can always find this distance because point P and C, we can always find this PC. But PC we have not been given because C we don't know. What we can find? We can find PB. So we'll find this distance. So this distance, if you will find, this will come out to be, I think, 4√2. Okay, so this is the distance you can find. So now how you find the equation of circle? We can find the radius of circle because this is radius. This is also radius. So you can find radius r plus 4 equal to 4√2. So you can find the condition 2r plus 4 is equal to 4√2. We can find the radius like this. This will give you radius of the circle.
And to find the center, we can always apply the condition कि हमें ये रेशो पता है. देखो, to find C, we know the point B, we know the point P. So we can say point C divides line joining B and P in the ratio R is to R plus 4. Because here it is R, here it is R plus 4. So you can write this point R multiplied by 2, R plus 4 multiplied by 6. So if for point C, if you will write x coordinate of center, that will be R multiplied by 2, R plus 4 multiplied by 6 upon R plus 4. Similarly, you can write the y coordinate, you can find the center of circle. So this type of question can be framed. Always remember, you can use here section formula. So section formula का यहाँ पे use आ सकता है. So this is point and circle related concept. So we usually don't look for point and circle concept. We think it's very easier, but always remember that comes in complex numbers also. So this is the same concept which can be used in that also. The equation can be written in terms of complex number. Then you can change that equation in terms of coordinate geometry, and then you can solve the question. So this is equation of circle, point and a circle. Next is line and a circle. For line and a circle, the important line is tangent to the circle. For tangent, always remember you have to apply the condition distance from center of circle equal to radius. This is the condition you can always apply, and you have to mostly always apply. अगर किसी भी question में, any question, if it is given कि line is tangent to the circle, you always have to make this diagram center से perpendicular. I'm telling it again and again and again because you have to do this. You have to always apply this. Chord, the condition is distance from center is less than radius. If the chord length is given, if the question is related to length, then we make the diagram from chord. On chord from center of circle, you will draw this perpendicular. You will make this 90-degree triangle always. If the length is related of chord, हमेशा ये diagram बनाएंगे. For tangent, you always make this diagram distance from center equal to radius. If the chord question is not of length, if slope or something, for chord, if the question is something related to slope or something, like you have to find the condition on slope or something. Because if the condition is on slope, for that line we apply the condition distance from center is less than radius. Something like this, the condition we will apply. Next is normal to the circle also. Normal always passes through the center of circle. Normal is the line perpendicular to the circle that always passes through the center. So any line, if it is given that is normal to the circle, you always have to satisfy the center of circle point in the equation of normal. That is what you will always have to do. तो ये आपको हमेशा करना है, ध्यान रखना है. ये क्वेश्चन में कभी लिखेगा नहीं. This is the condition we apply. This is the basic illustration for any question. Distance from center is equal to radius. If it is given line is tangent to a circle, you have to apply this condition. The equation of line is y equal to mx plus c. For this, we'll apply the distance from center equal to radius. This is the basic part of equation of tangent. Next is equation of tangent in point form. Point form you already know. X1, Y1 point is given. You have to find equation of tangent. This type of question rarely comes. It will not come in exam. But you should know when to use point form. Point form we only use if you know the equation of tangent and you have to find the point of contact, point of touching on the circle. That is how it is used of point form. Otherwise, there is of no use. If you know the equation of tangent, you don't know the point, and somehow we have to find the point and use it. Then only we use this point form. Most of the cases which I have seen is this one. For x square plus y square is xx1 plus y1 equal to r square. For this parametric form is r cos theta r sin theta. We can use it here also. Next is equation of circle is slope form. You can remember the equation of circle in slope form. Or what I use is distance from center equal to radius. I can apply this condition. So y equal to mx plus c is equation of tangent. So c, if you will find distance from center equal to radius, that will come out to be r under root 1 plus m square. R is radius of circle, m is slope of the line. So to find this equation, if you will see, there is only one variable, slope, m. m जो है हमें यहाँ पे find करना है. एक ही variable हमारे पास, तो हमें find करना है, that is m. अगर अपने को m यहाँ पे find करना है, you need only one condition. There is only one variable, you need only one condition. That type of condition is usually given in the question. It can be written in the question, this tangent is passing through a point. So you just satisfy that point, you find the value of m. This is for x square plus y square equal to r square. If there is x minus h and y minus k, center is h comma k, you replace y minus k and x minus h by y and x. You just replace this. The same equation you can write it here also. So this is the basic
Now next important thing is tangent from external point. This diagram according to me is very important. This is the last diagram we will discuss here. It becomes very important. On this diagram definitely question will come in the exam. Not definitely, but ये डायग्राम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस पे क्वेश्चन कम आए हैं और इस पे कितने भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं. कुछ स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट्स हैं which you have to remember, which you can remember from this diagram. If there is any question from tangent from external point, two tangents are drawn to the circle. You should always know what are the conditions you can use in the question. From an external point x and y1, if I draw tangent to a circle whose center is x0, y0, radius is r. First condition what we can say is, if this is tangent, we can always draw from center of circle. You can always draw the 90 degree. Based on this, we can say is, first condition is length of tangent. Length of tangent कैसे define करते हैं? From external point, if you draw a tangent, the point of contact, the distance between them, इनके बीच का जो distance है उसको बोलते हैं length of tangent. उसका formula आपको पता होगा. Equation of circle में जो external point है आप satisfy करा देते हैं, that is called S1. उसको अंडर रूट ले लेते हैं, that is length of tangent. So now how it is used? First condition इसके बाद में आती है, that is PACD. ये जो है एक cyclic quadrilateral है. Cyclic quadrilateral ऐसा होता है. The opposite angle sum is 180. This is 180. So here also the angle sum. Here, if I define this angle as theta, this is 90. This will become 90 minus theta. This will also become 90 minus theta. So here also the angle sum is 180 degrees. So this is cyclic quadrilateral. इसका मतलब होता है इस पॉइंट से इस पॉइंट से और इस पॉइंट से पास होने वाला सर्कल. देखो फिर से वो 90 डिग्री का ट्रायंगल आ गया. The circle passing from these 3 points, it will has PC as diameter. So if you have to find the equation of circumcircle of PAB, so if there is an external point, I have drawn two tangents to the circle. The point of contact is A and B. Triangle PAB, you have to find the equation of circumcircle. The circumcircle will be passing through center of circle C, and PC will be the diameter. So we can find this equation, diameter PC, x minus x0, x minus x1, y minus y0, y minus y. See, तो देखो क्वेश्चन में क्या है, 90 डिग्री ट्रायंगल इज देयर, सर्कल इज देयर, सो देयर विल बी डायमीटर. तो यहाँ पे भी देखो डायमीट्रिकल फॉर्म में ही इक्वेशन ऑफ सर्कल अपन ने लिखी. इस सर्कम सर्कल की इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है. एंड इफ यू हैव टू फाइंड द सेंटर ऑफ दिस सर्कम सर्कल, वी कैन से द मिड पॉइंट ऑफ P and C will be the center. Radius will be CP. You can find the distance between 2 points. Half of that will be the radius. Next important point is angle between tangents. From external point, two tangents are drawn, and you have to find this angle. I have divided it as theta theta. So I have defined angle as 2 theta. So we can write tan 2 theta as 2 tan theta upon 1 minus tan square theta. And tan theta you can write from this triangle trigonometry. Theta, you know the radius, you know the length of tangent. Tan theta is r by lt. Just put the value here. You can find the angle between the tangents. Next important thing is chord of contact. Chord of contact is called AB. So chord of contact, it's an important concept in which questions can be framed. We will discuss more questions in next class. What is chord of contact? Chord of contact is defined for an external point of a circle. From an external point of a circle, if you draw two tangents to the circle, and the point where it touches the circle, if you join these 2 points and make a chord, that is called the chord of contact for external point. So this is chord of contact, COC for point P. Chord of contact is always defined for external point. It means from external point, if you have defined two tangents, if you join those 2 points, that is called chord of contact. तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी करोगे, ऑलवेज रिमेंबर सर्कल्स में कभी भी वो chord of contact वर्ड यूज नहीं करता है. नोटिस करना, कभी भी कोई क्वेश्चन देखना. जेई का आईआईटी का क्वेश्चन, उसमें chord of contact word will not be there. There will only be word of tangent. There will be only word of chord. He will never use chord of contact. So the question, if it will be framed on chord of contact, the question will be written like this. From an external point, two tangents are drawn. It will touch the circle as 2 points, and by joining those 2 points, you will make a chord. Because officially chord of contact is not in syllabus, because syllabus में explicitly chord of contact word use नहीं किया. So what IIT JEE exam paper setters, what they do is they don't use those words which is not there in syllabus, but they make questions on those words indirectly. Either if IIT JEE paper, the question, if the word is used chord of contact, then he will define chord of contact. इसलिए ये चीज ध्यान रखना. तो this is called chord of contact. To write the equation of chord of contact, what we do is, from the point from where chord of contact is drawn, always remember, from here chord of contact is drawn, but this is not chord of contact. From this point, if chord of contact is drawn, this is these tangents touching point, you make the chord. If you write the equation of chord of contact, what you do is, for x1, y1, how you write the equation of tangent to circle? X square, x1, y square, y1, x is x plus x1 by 2, y is y1 plus y1 by 2. That is T.
So the chord of contact equation is same as equation of tangent, considering Px1 y1 is on the circle. Remember, it is not on the circle, but the equation is written like that only. That point P is on the circle. You write the equation of tangent in point form. That equation is same as the equation of chord of contact. This chord you can be told to find the length. So length will be LD sine theta from 90-degree triangle. This one you can find LD sine theta and uska double kar denge 2LD sine theta. Next is area of triangle ratio. The area of triangle formed by length of external tangents with the chord and center of circle with the chord. PAB and ACB. The ratio this triangle area, how you can define? You can use properties of triangle. In properties of triangle, we know if there are two sides A and B, and this is angle C, you can write area as half AB sine C. So here, if you will see half LT, because this length will also be LT, half LT square sine 2 theta. I can write this area. Area of triangle CAB, half R square sine 180 minus 2 theta. That will also be sine 2 theta. So if you will take the ratio, it will be LT upon R का whole square. So this is also a direct question that can be framed on this diagram. तो इस तरह से ये डिफरेंट क्वेश्चंस इस डायग्राम पे बनाए जाते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं. ऐसे ऐसे क्वेश्चन इस पे हम बना सकते हैं और क्वेश्चंस अपन देखेंगे. क्वेश्चंस पे देखने से पहले एक लास्ट चीज मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ. लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स. तो क्वेश्चन इस पे आया हुआ है आईटी में एक बार क्वेश्चन. तो बेसिकली व्हाट इट स्टेट्स इज कि इफ दिस एंगल इज 90 डिग्री here from external point, if you have drawn two tangents which are perpendicular to each other, or there are two tangents drawn to the circle which intersect at 90 degree. So if this is 90 degree, theta will become 45 degree. Here also it will become 45 degree. So to find the locus of this point, we will define this point as h comma k, because we write it in terms of h comma k. तो अब यहाँ पे नोटिस करो, this question can be framed for perpendicular tangents. This question can be framed if the angle here is 120 degree, if the angle here is 60 degree. It can be framed for any angle between the tangents. Locus of point of intersection. For 90 degree, एक favorable result आता है. So how you solve this? R upon LT is sin 45. We can apply this condition. R upon LT is tan 45. And we can also apply this condition. R upon CP is equal to sin 45. That is 1 by root 2. So we can find this length CP is equal to R root 2. And to find the locus, we apply the distance between H comma K and X naught Y naught. क्योंकि इक्वेशन ऑफ सर्कल पता होगी, तो वी नो दिस पॉइंट, वी हैव टू फाइंड इट इन टर्म्स ऑफ h comma k. तो cp square will be distance between these two points, that is h minus x naught का square, k minus y naught का square is equal to 2r square. So locus of point of intersection of perpendicular tangents will be what? It will be a circle whose center is same as original circle C. The center will be this and the radius will be r root 2, that is this length. cp will be r root 2. तो अगर हम एक ऐसा बड़ा सारा सर्कल बनाएंगे यहां से कुछ तो इस तरह से बड़ा सर्कल, जिसका सेंटर ये होगा, उसकी रेडियस ये होगी, दैट विल बी द सर्कल. ऑलवेज रिमेंबर, नोबडी विल यूज दिस वर्ड इन द क्वेश्चन इन आईआईटी, डायरेक्टर सर्कल. वर्ड यूज नहीं करते हम. क्वेश्चन ऐसे दे सकते हैं, परपेंडिकुलर टेंजेंट्स आर देयर. फॉर परपेंडिकुलर टेंजेंट्स यू नो this will be r root 2 times length, because this is the diagram. If the angle here is 120, you can find this length. For that also locus will be, center of circle will be this, radius will change. That is how you can make this question. तो अभी अपने क्लास खत्म करते हैं. नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे. मैं आपको कुछ क्वेश्चन सेंड करूंगा which you can solve. जितनी जल्दी होगा मैं क्वेश्चंस भेज दूंगा. You can solve around 20 questions I will send. So from next class we will study from 11 to 1, and after 1 we will discuss those questions which you will solve. The questions will contain previous IT questions also based upon the concept which I have already told you. उस तरह से आगे हम प्रोसीड करेंगे.